एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, तो मैम थोड़ी देर के लिए आप अगर मैम थोड़ा हम सा लोगों ने स्टॉप हो कुछ सकते मैम हैं। प्रिपरेशन किया था मैम। ओके। ओके राहुल कंटिन्यू। ओके। अतुल, साउंड इज क्लियर? या क्लियर राहुल ओके। क्लियर। ओके। Welcome to dear all participants. I am Rahul Kumar, BTech third year Computer Science Engineering student and member of EdPLC. First of all, thank you very much for taking your precious time and participating in this interactive and energetic session. And I hope this session is beneficial for your career. Now, I will be introduced to Miss Niharika Arora ma'am, who is the presenter of interactive session. Very good evening, ma'am. Our whole ATPLC team is thankful to you that you accepted our invitation and give her precious time to come to this interactive session. Before moving forward into this interactive session, I would like to introduce all of the participants to Niharika ma'am. Niharika Arora ma'am is senior Android engineer at 1MG, a leading digital healthcare platform, Gurgaon, India. She is one of the core developers for Government of India's contact tracing app Arogya Setu. Recently, she is selected as Google Developers Expert from India by Google. She is an active technical blogger, open source contributor, public speaker, and a mentor. Niharika ma'am had been graduated with Bachelor for Technology in Computer Science stream for YMCA University of Science and Technology, Haryana in 2015. She is university topper of the she is university topper of her time and was awarded with Chancellor Gold Medal for JC Bose YMCA UST 2011 to 2015 batch by Honorable State Governor SH Captain Sri Captain Singh Solanki. She is continuously doing lot of work for the community development, and she has also been recognized by India Mentor for giving back to the community. Currently, she is also the global ambassador of Women Tech Network, which is on a mission to unite 1 lakh women in tech to discuss things that matter. Now, I would like to hand over this session to Atul Kumar, the initiator of ATPLC, to continue further. And sorry, ma'am and participants, I can't interact with video because my camera is not working properly. Okay, ma'am. Atul. Okay, thanks a lot Rahul. Hello everyone. Good evening to all of you. My name is Atul Hello, Kumar. Atul. Yeah. Hello. What happened? Hello. Rahul. Hello. Oh, actually, my network is making problem. Okay. Wait. Hello. Wait. Just a minute. ये क्या यार मेन समय पे तो कर लल्ला फड़ते दिया। हेलो हेलो राहुल हेलो Atul. आप म्यूट पे हो अतुल। ओके ओके मैम या सॉरी Atul. या राहुल हेलो हाँ, स्टार्ट ऑडिबल करो. ओके ओके हाँ. चलो थैंक्स a lot Rahul. Hello everyone, good evening to all of you. My name is Atul Kumar and I am third year computer science student and yes initiator of this club. If I talk about this club, so I have started this club nearly 9 months ago to enhance practical learning among students of our state. And best part is that
This club is continuously evolving day by day, and all credit goes to its active members who give their time to make every event of this club successful. I am thankful to all such member to supporting me in my initiative. Today, we have also some new member who has connected with us for first time. Okay, no problem. Our whole ATPLC team welcome all those members, and we hope many new members join with us in future also. Okay, now move towards today's session. Today's session is best example how technology brings people residing in different part of world in India together. We have with us Miss Niharika Arora, who is senior Android engineer at 1MG. Okay, Niharika ma'am, our whole ATPLC team welcomes you, and now I am holding this session to you. Ma'am. Hi, everyone. So thank you, Rahul and Atul, for the introduction, and thank you for inviting me here. Students से interact करना हमेशा एक उस zone में ले जाता है कि I am going back to my college life, and I have already have this phase when I was in college कि कैसे decide करनी है चीजें, कैसे balance करूँ एक syllabus और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बीच में, या मुझे जॉब कैसे चूज करना चाहिए, मुझे किस कंपनी की कहाँ कैसे जाना चाहिए, या मुझे प्रोग्रामिंग अगर करनी है तो मुझे किस लेवल की प्रोग्रामिंग और कैसे करना चाहिए, या फिर मुझे अपनी स्किल्स इंक्रीज करनी है, मुझे इम्प्रूव कैसे करना चाहिए. तो ये क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं अब 5 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में, बट अभी भी ये क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं कि इम्प्रूवमेंट और लर्निंग्स कभी एंड नहीं होती, और वो हमेशा चलती रहनी चाहिए. जिस दिन आपको ये लगने लगा कि यू आर डन विद योर लर्निंग्स एंड यू नो एवरीथिंग, शायद उस दिन आपका करियर एक जगह हो जाएगा कि अब आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे. तो ये चीज शायद अपने अंदर से कभी जाने नहीं देना. आपको हर दिन ऐसा लगना चाहिए कि you have to do many things in life and you have to achieve many things. Just be happy with what you are. जो भी आपके पास है उन चीजों के साथ खुश रहना सीखो, बट कभी भी उन चीजों से सेटिस्फाई मत होना लाइफ में कि आप लोग ये सोच के बैठ जाओ कि हाँ बस बहुत है, अच्छा है, ठीक है. इससे आप कभी लाइफ में चीजें अचीव नहीं कर पाओगे. लेकिन अगर काम रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, रोज लर्निंग्स को रखोगे, तो शायद यू विल अचीव मेनी ग्रेट थिंग्स इन लाइफ जिसका आपने शायद सोचा भी नहीं होगा. तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस थे. मैंने अतुल को बोला कि आई वांट क्वेश्चंस फ्रॉम यू गाइज, क्योंकि शायद मैं एक आगे आ चुकी हूँ उस फेज से, और इस टाइम शायद कुछ नए क्वेश्चंस भी हों. कुछ क्वेश्चंस मुझे पता थे कि ऐसी चीजें हमेशा दिमाग में आती हैं, बट कुछ क्वेश्चंस हैं मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से पूछना चाहिए, क्योंकि हम लोग फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं. बट मे बी शायद हैंगआउट्स और मुझे लगता है पैंडेमिक के जरिए इस टाइम पे कनेक्शन ईजी हो गया है, क्योंकि आज इस टाइम पे शायद मैं कभी वहां नहीं आ पाती, या सब आप लोग सब यहाँ नहीं आ सकते थे, तो शायद वर्चुअल मीट के थ्रू ये चीजें पॉसिबल हो पा रही है. तो मेरे पास कुछ हैं पॉइंट्स जो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ. तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ. आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? मैम यस प्रेजेंटिंग से निहारिका स्क्रीन शो नहीं हो रहा है मैम. मैम स्क्रीन शो नहीं हो रहा, सिर्फ प्रेजेंट लिख रहा है. अच्छा एक सेकंड मैम. दिख रहा है मैम. स्क्रीन ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है? यस मैम, इट्स अ विजुअल थोड़ा. और अभी स्लाइड्स दिख पा रही है? मैम स्क्रीन शो नहीं कर रहा है. यस नो मैम, फिर से आप ओके, मैं एक बार दोबारा करके देखती हूँ. एक सेकंड. अभी यस मैम. अभी दिख पा रहा है? यस मैम. ठीक है. नहीं मैम. यस मैम. यस ओके. सो हमेशा ये क्वेश्चंस उठते हैं कि हाउ टू डिसाइड द नेक्स्ट स्टेप्स इन योर करियर. तो मुझे जो पॉइंट्स लगते हैं आई विल बी शेयरिंग, और आप लोगों के पास कुछ भी ऐसा होगा, कोई भी क्वेश्चंस हैं, आई बी हैप्पी टू आंसर दैट.
सो अभी आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सब लोग बीटेक कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ यू गाइस आर यू गाइस फ्रॉम कंप्यूटर्स ओनली और डिफरेंट और डिफरेंट स्टैक से भी हैं आप लोग, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, बहुत सारी स्ट्रीम्स अवेलेबल है। तो आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो अलग अलग स्ट्रीम से हैं यहाँ पे अभी? वो आप लोग चैट में आंसर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो मेरा ये क्वेश्चन, हम लोग आज के टाइम में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की साइड क्यों बढ़ रहे हैं, मेरा ये एक हमेशा आप लोग ये चीज सुनते होंगे, तो यू हैव सीन दैट एवरीथिंग राइट नाउ इज गेटिंग ऑटोमेटेड। आप अगर मैकेनिकल कंपनी में चले जाओ, आप मारुति या यामाहा या किसी भी ऐसी कंपनी की बात करो जहाँ पे आपके आर्किटेक्ट्स या किसी की भी बात करते हैं हम, तो क्या होता है, people are having automated solutions। आपके पास सब चीजों के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। आप लोग अगर मैं अभी मैं बात करूं सोशल मीडिया की, आप लोग एप्लीकेशन बनाते हैं, एप्लीकेशंस आर नथिंग जस्ट सॉफ्टवेयर्स। आप लोग किसी भी चीज के लिए आप डॉक्टर्स के पास जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, उनके खुद के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जहां आपकी वो सारी डेटाबेस में चीजें रखते हैं, क्योंकि मशीन जिस तरीके से किसी चीज को याद रखती है उस तरीके से एक ह्यूमन माइंड नहीं रख सकता। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे शायद कल क्या किया था या परसों क्या किया था थोड़ा बहुत याद हो, लेकिन 4 दिन पहले क्या किया था मुझे नहीं याद होगा। लेकिन अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर किसी चीज को इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इसे इस तरीके से ही काम करना है, तो सॉफ्टवेयर विल वर्क अकॉर्डिंगली, ओनली it will follow the commands you have given to it। तो हमारी सारी जनरेशन, हमारी सारी आगे फ्यूचर के लिए सब चीजें सॉफ्टवेयर की साइड बढ़ रही है। और आप अगर मैं कंपनीज की बात कर रही हूँ जहाँ मशीनरीज अवेलेबल है, वहां पे भी आप अगर मैं बात करूँ तो उनके भी हर चीज कंप्यूटराइज्ड है, जिससे वो ऑन कर रहे हैं मशीन्स को, ऑफ कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एरा है जो, और ये कभी एंड नहीं होने वाला मशीन्स, क्योंकि आप, मेरे को तो ऐसा कई बार लगता है कि ह्यूमंस को ही रिप्लेस ना कर दे किसी टाइम पर मशीन्स, बट हाँ, ह्यूमंस की जरूरत तो होगी, क्योंकि कोई बनाने के लिए तो चाहिए ना जो इन चीजों को चला सके। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आप लोग अपना पार्ट चूज कर रहे हो तो दैट इज फार बेटर देन एनी अदर फील्ड। और ऐसा नहीं है कि और फील्ड्स की बात भी हम नहीं कर सकते। अगर आप लोग, इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग, इंजीनियर्स वर्ड ही इसीलिए बना है। अगर मैं बात करूं, अगर आप इंजीनियरिंग आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको घर में बोला गया है कि एक बीटेक की डिग्री चाहिए, और बट आपका पैशन किसी और चीज में है, तो इससे कभी भी ये चीज मत करना कि आप इंजीनियरिंग तो कर रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि 4 सालों के बाद मुझे क्या करना है। जस्ट एक टैग लेने के लिए या जस्ट एक डिग्री लेने के लिए आपके माइंड में हमेशा एक चीज होनी चाहिए कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। वो कुछ करना हमेशा आपको ना अंदर से पता होता है। we always know कि what we need to do in our with our lives। शायद किसी को जल्दी पता चल जाता है और किसी को लेट पता चल जाता है, और पता चलता है, लेकिन इसमें कोई हार्म नहीं है। तो इस चीज को कभी अपने उससे नहीं लेना कि यार आज ये मेरा बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है और मैं अभी नहीं हूँ। सबका टाइम होता है सब चीजों को करने का। अपनी हार्डवर्क पे बिलीव करो कि अगर आपको कोई पैशन है किसी चीज का, तो यू विल बी एबल टू अचीव दैट ओनली थ्रू योर हार्ड वर्क। कोई आके आपको समझा सकता है, आपको एडवाइस कर सकता है, लेकिन अगर आप लोग उस चीज को नहीं करना चाहोगे तो नहीं हो पाती है चीजें। उसके बाद मुझे आप लोगों में से किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग अपनी बीटेक अपना कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा जरूरी क्या है आपके लिए लाइफ में, कहाँ पे आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए, आपकी स्किल्स इंप्रूवमेंट या सिलेबस? इसका ना कभी भी आपको एक बेटर आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि सिलेबस आप कहीं ना कहीं जब आप करते हो तो आप ये देखो, सिलेबस आपका स्किल से ही जुड़ा हुआ है ना। आपको आज कुछ सिखाया जा रहा है कॉलेज के अंदर, तो आपको, अगर मैं बात करूं, आप लोगों का भी डेटा स्ट्रक्चर्स आया होगा सब्जेक्ट, या अभी नहीं आया तो वो आएगा। डेटा स्ट्रक्चर्स या एल्गोरिथम्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बेस है। आप उस चीज से ही आगे, अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, आपका मैथ्स लॉजिक करने का तरीका अच्छा है, जिंदगी में आप कभी मार नहीं खा सकते। किसी भी लैंग्वेज को आप कोई भी लैंग्वेज पकड़ोगे, कोई भी लैंग्वेज पे काम करोगे, you will be able to resolve all the problems there, क्योंकि आपको आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है हर चीज के लिए। आपने जब स्टार्ट भी किया था पढ़ना, आपने ABC सीखी थी, उसके बाद आप ऊपर वाली चीजों पे आए। और अगर वो ABC अगर आपने ढंग से ना की होती, या
मैं हिंदी में बात करूं, आपको ये चीजें नहीं आती होती तो शायद आप जिंदगी भर उनके लिए गलतियां करते। तो आपका सिलेबस कहीं ना कुछ तरीके से आपका रिलेटेड है आपकी स्किल से, बट ये आपको जरूर डिसाइड करना होता है कि आपको थ्योरी में मैं ये नहीं कहूंगी थ्योरी को सिर्फ पढ़ो, लेकिन उन चीजों को जब तक आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करते ना, आप 6 महीने बाद, क्योंकि हमारा सेमेस्टर होता है और कहने को वो 6 महीने का होता है, लेकिन 3 मंथ्स में आपकी चीजें खत्म हो रही होती हैं। तो आप अगर उन चीजों को अगर उनको प्रैक्टिकली नहीं करके देख रहे हो, आप डेटा स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ा लेकिन आपने कोडिंग में उनको आपने प्रैक्टिकली उनको नहीं करके देखा, तो उसका कोई यूज नहीं है। आप लोग हमेशा बस उस चीज को पढ़ते रह जाओगे और 4 दिन बाद उसको फिर भूल जाओगे, क्योंकि कोई भी चीज मैं आपको बोलूंगी या कोई टीचर आपको पढ़ा के जाएगा तो वो सिर्फ उतने तक ही रहती है, लेकिन अगर उसको आपने किसी तरीके से मोल्ड करके अपने पास उसको देखा नहीं कि एक्चुअली में ये बनी कैसे है, क्यों है, ये क्यों एग्जिस्ट क्यों करती है, इसने क्या प्रॉब्लम रिजॉल्व की है, जब तक आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी नहीं आएगी ना कि मेरे को इन चीजों को करना है, तब तक आप अपनी स्किल्स इंप्रूव नहीं कर सकते। तो आप अपनी सिलेबस को स्किल्स के साथ जोड़ो, लेकिन हाँ अपना सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट नहीं रखो। और दिन में अगर आप सिर्फ इफ यू आर डिवोटिंग जस्ट 1 hour टू योर स्किल्स, अगर आप कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हो या आप म्यूजिक या सिंगिंग में इंटरेस्ट रखते हो, आप अगर 1 घंटा भी अगर उसमें से अपनी लाइफ का निकाल के उस पर लगा रहे हो, आप उस चीज के मास्टर बन सकते हो। तो आप उन चीजों को हमेशा रिलेट करके चलो, ये नहीं आप दोनों चीजों को कभी भी अलग नहीं कर सकते। तो इन चीजों का हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद है आप लोग कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रख सकते हो सेमेस्टर एग्जाम, स्किल लर्निंग या गेट प्रिपरेशन। अब आप लोग जब 4 साल बाद निकलोगे या ग्रेजुएशन आप करते हो तो वी हैव आवर सेमेस्टर एग्जाम्स। और आई नो बीटेक के अंदर कुछ दिनों बाद सेशनल्स हैं, फिर एग्जाम्स हैं, फिर कुछ ना कुछ फेस्ट आ जाता है, छुट्टियां आ जाती हैं, यू हैव वेकेशंस, एंड देन आफ्टर दैट या तो आपको जॉब की साइड आप लोग जाते हो, आपका इंटरेस्ट है या आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या फिर आप लोग आगे पढ़ना चाहते हो, गेट के लिए प्रिपेयर करते हो। तो क्या होता है, गेट के लिए प्रिपेयर लोग लास्ट ईयर में करना अपना स्टार्ट करते हैं। आपकी स्किल्स के लिए ना 1 या 2 घंटे से ज्यादा आपको चाहिए नहीं दिन के अंदर। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगी कि अगर आपका कोई इंटरेस्ट है ना, आप लोग एक भी दिन स्किप नहीं करो उसके लिए, क्योंकि whenever we skip a day when we are doing practicing something, what happens is चल कल कर लूंगा, चलो कल आज नहीं कल करते हैं इस चीज को। जब वो चीजें आने लगती है ना, इसका मतलब आप अपना इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं। वो इंटरेस्ट मत जाने दो, चाहे आप उस दिन अगर आपके पास टाइम नहीं निकल रहा है, आपका मन कम है, आप ½ an hour लगा लो उस चीज पे, लेकिन उस चीज को टाइम रोज दो। उसके लिए कोई सैटरडे कोई संडे नहीं होना चाहिए लाइफ में, हमेशा ½ an hour 1 घंटा होना चाहिए। मैं अभी भी अगर अपना काम करती हूँ तो मैं सैटरडे संडेज को काम कर रही हूँ, अपना काम कर रही होती हूँ, मैं रात को अपना काम कर रही होती हूँ, बट ये है कि ये मुझे अच्छा लगता है करना। तो आपको जो भी अच्छा लगता है ना करना, उन चीजों के ऊपर आप एटलीस्ट 1 घंटा रोज का निकालो। जहां तक बात है सेमेस्टर एग्जाम्स की, अगर आप अपनी स्किल्स बिल्ड कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, 60% एक रेंज है। उसके बाद अगर आप 60% तक अपना रखते हैं अच्छा कि आपने अपना स्किल्स भी अच्छी कर ली है, लेकिन आप उसके साथ साथ अपना सेमेस्टर का एग्जाम के टाइम पे आप पढ़ लेते हैं और अच्छे से उस चीज को जो भी है, क्योंकि एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको ही पता है एक बुक के अंदर से चीजें आनी है और आप उसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। आप 60% तक उसको रखो अगर आपका इंटरेस्ट उस चीज में है। अगर आप टॉपर हो तो आप उसके लिए थोड़ा और टाइम निकाल सकते हो, पहले से ही थोड़ा बहुत पढ़ लिया। और मुझे ऐसे लगता है टाइम हमेशा होता है चीजों को करने का, लेकिन इंटरेस्ट की बात होती है, आपका इंटरेस्ट किस चीज को करने में है। ये बहुत एक वेग आंसर होगा या बोलना ये रीजन अगर आप लोग अपने आप को देते हैं, आप किसी और को रीजन दे सकते हैं कि यार मुझे टाइम नहीं लग रहा चीजों को करने का, या पता नहीं लोग कैसे कर रहे हैं, सेमेस्टर बहुत छोटा है, लेकिन आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। आपको अंदर से पता होता है कि आपका शायद मन नहीं कर रहा उस चीज को करने का, आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन टाइम हमेशा होता है और मैनेज हमेशा चीजें हो सकती हैं। आप अपने एग्जाम के लिए ठीक है उसके टाइम से थोड़ा टाइम पहले पढ़ना स्टार्ट कर दो, स्किल्स के लिए आप रोज एक 1 hour यू डिवोट देयर, और गेट प्रिपरेशन के लिए लोग लास्ट ईयर में स्टार्ट करते हैं, आप लोग उन चीजों को लास्ट ईयर में स्टार्ट कर सकते हो। तो उससे पहले अपनी स्किल्स अच्छे से इंप्रूव कर लो,
पर गेट के लिए आपका ये चीज आ जाता है कि गेट के लिए आप लोग और पढ़ना चाहते हैं, आप जॉब की साइड नहीं जाना चाहते, तो आपका एक माइंड सेट पहले से होता है उन चीजों को करने के लिए। तो आप लोग उन चीजों को एक पर्टिकुलर इंटरवल बना लो कि इस टाइम पे मुझे एग्जाम के लिए ही करना है, एग्जाम से थोड़ा टाइम पहले स्किल्स मुझे रोज 1-1 घंटा देना है, और गेट प्रिपरेशन के लिए मैं लास्ट ईयर में बहुत ज्यादा अच्छे से करने वाला हूँ, और उस टाइम पे आप सेमेस्टर को थोड़ा सा लेस प्रायोरिटी कर सकते हैं। उसके बाद है कि व्हाट इज द की मोटिवेशन टू बिल्ड माय करियर इन प्रेजेंट सेमेस्टर एंड हाउ आई कैन गिव माय बेस्ट टू मेक इट पॉसिबल। तो पहले तो एक चीज है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एक होता है कि उन्हें टॉप भी करना है, जैसे मेरे को था कि मुझे टॉप भी करना था, और मुझे अपना बट सबका नहीं होता है इस चीज का, और आई रिस्पेक्ट एवरीवन्स परसेप्शन, क्योंकि ऐसा नहीं है जरूरी कि टॉपर एक ही होता है। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि हमेशा आप लोगों को भी एक रेस के अंदर भागना है चीजों को करने के लिए कुछ ना कुछ। आज मेरी कंपनी में भी शायद मैं एक टॉपर निकल के आई हूँ, सब लोग नहीं होंगे, लेकिन वी आर वर्किंग। आपकी स्किल्स जरूर मैटर करते हैं, कि आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर रहे हो और उसके बाद आप चीजों को भी आप अपनी स्किल्स भी इंप्रूव नहीं कर रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं। जस्ट एक डिग्री लेने के लिए आपको कुछ करना है, तो ऐसे तो फिर बहुत सारी डिग्रीज हैं, आप किसी भी चीज को ऐसे बस एक नाम के लिए ले सकते हो कि हाँ बीए किया है, बीटेक किया है, बीसीए किया है, तो इन चीजों को नहीं करो। मोटिवेशन के लिए, मोटिवेशन ना एक ऐसा वर्ड है, ये शायद आपका हमेशा एक सेल्फ मोटिवेशन की नीड होती है। कोई भी आपको एडवाइस कर सकता है, मैंने जैसे पहले बोला कि जैसे आज मैं आई हूँ, या अतुल आप अगर कोई क्लब चला रहे हैं, तो we people can motivate you, can guide you for best possible paths available, लेकिन उनमें से चूज क्या करना है ना, वो शायद सिर्फ आप जानते हो अपनी प्रेजेंट सेमेस्टर को कॉप अप करते हुए। क्योंकि जैसे मेरा था, मैं अगर अपना बताऊं, मेरे को कुछ अगर पढ़ाया जाता था या कुछ क्लास में कोई चीज डिस्कस होती थी, तो मैं ऐसी कभी स्टूडेंट नहीं रही कि मैं सिर्फ एक जिस टीचर ने कुछ नोट्स लिखवा दिए और मैं उनमें से पढ़ रही हूँ। मैं उस चीज के बारे में लैपटॉप, कंप्यूटर पर, ऑनलाइन हर जगह सर्च करती थी। मुझे जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन या आंसर लगता था, मेरे को नोट्स लिखने की बहुत आदत है। एक एक्सरसाइज होती है ये कि आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपना जितना भी आप चीज बोल रहे हैं, हमेशा अपने माइंड में ना रखे, उस चीज को कहीं नोट डाउन कर लें। और मेरे को हमेशा नोट डाउन करने की आदत रही है, इससे आप अपने माइंड से उन चीजों को निकाल देते हैं, आप और जगहों पे फोकस कर सकते हैं। और आपने कहीं लिख दिया तो आपको हमेशा याद रहेगा उस चीज को करना। तो मुझे नोट्स बनाने की बहुत आदत थी, इससे वो नोट्स मेरे और मेरे फ्रेंड्स के काम आ जाते थे साथ में, और मैं उस चीज को हमेशा याद रख पाती थी। अब मैंने प्रेजेंट में वो चीज पढ़ ली है, तो अब मैं अपनी और चीजों पे भी, अपनी स्किल्स पे फोकस कर पाती थी कि मैं अपना एक टाइम मैंने वहां पे लगा दिया, बट अब मैं दूसरी चीज पे भी लगा सकती हूँ। और मुझे लगता है शायद इस तरीके से ही चीजें होती हैं। और अगर मोटिवेशन की बात है, तो वो आपको अंदर से अपने आप लेके आना पड़ेगा उन चीजों को करने के लिए। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं है, और मुझे ऐसे लगता है लाइफ में हमेशा ये फेज हमेशा आना चाहिए कि आप लोग शुरू से एक किंग के घर पे नहीं पैदा हुए हो, एक राजा के घर पे नहीं हुए हो, आपने लाइफ में ऐसी चीजें देखी हैं। मैंने अपने 8th के एग्जाम दिए थे, मेरा 8th क्लास में मेरे पास कोई इन्वर्टर्स नहीं थे, कोई लाइट का नहीं। मैं विलेज से हूँ, मेरा बर्थ गांव का है। मैं वहां पे बैटरी में पढ़ती थी, और मैंने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था, और मैं हरियाणा में 21st उस पे थी। तो आप लोग क्योंकि मैंने उन चीजों को देखा था मेरी लाइफ में, कि मुझे अपने पेरेंट्स को फील कराना है कि नहीं, इससे भी बेटर लाइफ का चीजें हो सकती हैं। तो वो चीज मेरे खुद के अंदर से आई थी। और अगर आप लोगों को, अगर आज के टाइम में मुझे ऐसे, मेरे को जब अतुल ने अप्रोच किया, उसने मुझे ये चीज कहा कि मैम बिहार में चीजें नहीं मिलती लोगों को कहने के लिए, बट मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगी, मैं शायद लाइफ में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट बिहार के लोगों की करती हूँ। मैंने अपनी एक बार लाइफ में ट्यूशन रखी थी, और मैंने वो एक बिहार से सर थे उनसे रखी थी, और उसका रीजन बताती हूँ, क्योंकि जितने इंटेलिजेंट और जितना किसी चीज को पाने की भूख आप लोगों के अंदर है ना, शायद हमारे अंदर नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने कुछ चीजें देखी हैं, आप लोग उन चीजों के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में। तो आप लोगों के अंदर तो वो चीज का, वो सेल्फ मोटिवेशन मुझे लगता है हर बच्चे के अंदर बचपन से ही होना चाहिए, कि भाई मुझे तो कर रहे हैं, मुझे इस चीज को निकालना है। आप अगर IAS IPS ऑफिसर की बात करूँ ना, मैं ऑलमोस्ट सब बिहार से,
तो ये तो कहीं से भी आता ही नहीं है कि आप लोग पीछे हो किसी भी चीज में, आप लोग तो हमसे बहुत ऊपर हो। तो उन चीजों का हमेशा एक मोटिवेशन की तरह यूज करो, और इससे आप सेमेस्टर क्या अपना लाइफ टाइम चीजों को अचीव कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए विदाउट कोचिंग, मैंने ऑलमोस्ट कोचिंग्स नहीं ली हैं चीजों को करने के लिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन भी। ठीक है, जरूरी ऐसा होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो वहां पे उनको क्योंकि वहां जो पढ़ा रहा होता है उनको पता होता है कि पिछले क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं या कैसे होता है। आप लोग एक चीज कर सकते हो, ऑनलाइन इतना मैटर अवेलेबल है चीजों को करने के लिए, उनको एक जगह अपना एक डॉक्यूमेंट बनाओ, हर जगह से कलेक्ट करो चीजें, अपना एक डॉक्यूमेंट बनाओ और उन चीजों को धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करो। उनके अराउंड क्या चीजें हो सकती हैं, जस्ट एक वही मैटर नहीं, उनके अराउंड क्या क्या चीजें आ सकती हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करो। और कोचिंग की जरूरत हमेशा नहीं होती, ये बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है कि मुझे अगर गेट क्रैक करना है या मुझे किसी बड़े एग्जाम में क्रैक करना है तो मुझे कोचिंग की नीड होगी। ये बहुत बड़ा झूठ है। अगर आप लोगों को लोग रिझाने के लिए या पैसे बनाने के लिए लोग करते भी हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बिना कोचिंग के बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ में, बट उनकी वो जो एक डेडिकेशन है, अपनी चीजों को अरेंज करना स्टार्ट करो। आपके बहुत सारे सीनियर्स निकले होंगे, उनके एक्सपीरियंस से जानो कि उन लोगों को कैसे एग्जाम में क्या पैटर्न आता है, पुराने एग्जाम्स को उठाओ, आप लोग उन चीजों से रिलेट करो कि आप लोग किस तरीके से की चीजों को आपको पढ़ना चाहिए और आप उन चीजों को और ऐसा नहीं अकेले नहीं करो, हमेशा शेयरिंग में करो उस चीज को कि एक पार्ट एक दोस्त ने कर लिया, एक पार्ट एक दोस्त ने कर लिया, तो उन चीजों को उसके बाद आपस में एक्सचेंज करो। क्योंकि जब आप इंफॉर्मेशन अपनी डेटा एक्सचेंज करते हो किसी के साथ, अपनी नॉलेज, तो वो बंदा आपको और चीजें नहीं बताएगा कि अच्छा मैंने ये पढ़ा था यार, मुझे लगता है, या वो कोई क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे तो आपको लगेगा ओ ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था यार, ये तो मुझे पढ़ना चाहिए। तो इन चीजों से करो। और ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जिनका हमें लगता है कि नहीं ये कोचिंग में बहुत इजीली हो जाती है या उनकी खुद की बुक्स अवेलेबल होती हैं। बुक्स आप भी खरीद सकते हो, बुक्स तो बाहर बुक स्टोर पे हर बार अवेलेबल है। गेट की अगर मैं बात करूँ, गेट के नोट्स और सब चीजें हर चीज अवेलेबल, उन चीजों को खरीदो। टीचर्स वहां कुछ अलग नहीं करा रहे होते, बट आप लोग अपने सीनियर्स की हेल्प लेके और आपस में उन चीजों को पढ़ के यू कैन बी अ मास्टर ऑफ एनीथिंग। तो टीचर्स की आप लोग खुद टीचर्स बन के दूसरों को पढ़ाते हुए चीजों को कर सकते हो। Being an electrical engineering student, which field I can pursue? Which field you can pursue is मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल से हैं और वो लोग कंप्यूटर्स में कर रहे हैं चीजें। और ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल में जॉब्स अवेलेबल नहीं है या इलेक्ट्रिकल थोड़ा सा, मैंने अभी आपको एक चीज बताई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो क्या होता है ना कि आप लोग जब किसी चीज के लिए जब चीजें ऑटोमेट होती जा रही है ना, तो कंप्यूटराइज सब कुछ आता जा रहा है और कंप्यूटराइज सिस्टम में आप लोगों के लिए जॉब्स बहुत सारी अवेलेबल है। अगर आप एक लैंग्वेज सीख लेते हो या आप किसी कोडिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हैं किसी भी फील्ड में होते हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर का स्कोप कभी नहीं जाता। किसी और फील्ड से होना, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इनसे एक चीज का थोड़ा सा डिसएडवांटेज थोड़ा इंडिया में मेरे को कभी कभी लगता है कि थोड़ी सी जॉब्स कम हो गई हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि ऑटोमेशन होने की वजह से, और ये शायद बाहर भी इतना अवेलेबल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग इन चीजों से डीमोटिवेट हो जाओ। अच्छे स्टूडेंट्स कभी भी मार नहीं खाते। अगर आप अपनी फील्ड में मास्टर हो तो आप जॉब्स हमेशा अवेलेबल है, ये चीजें कभी जाने नहीं वाली। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एक मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत हमेशा पड़ेगी लाइफ में, लेकिन आपको उसका मास्टर बनना पड़ेगा। दूसरों से थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कंप्यूटर्स वालों से या इनसे, बट ऐसा भी नहीं है कंप्यूटर्स में अगर बहुत सारे बच्चे अवेलेबल है तो सबकी जॉब या सब, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ ऐसे कर रहे हैं कि यार ठीक है मैं बीटेक अपनी डिग्री के लिए कर रहा हूँ, तो उनका भी एक पैशन होता है। और अच्छे स्टूडेंट्स कहीं नहीं रहते। अब ये आपका डेफिनेशन है कि आप अपने आप को किस तरीके से उन चीजों को इम्प्रूव कर सकते हो। How to study in college so that we don't face any problem after college and is helpful in government job preparation. Government job preparation जो होता है उसमें as such आपके अगर मैं IAS या IPS की बात करूं तो उनमें आपकी एक सब्जेक्ट मैटर करता है,
कंप्यूटर वालों के लिए एक सब्जेक्ट होता है, उनका थोड़ा डिसएडवांटेज है वहाँ पे, बट और जो स्ट्रीम्स है जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके कोई भी दो खुद के जो बीटेक में ये पढ़ के आए होते हैं, इनके खुद के वो वाले सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर आप लोग अपने बीटेक में उन सब्जेक्ट्स के साथ अच्छा कर रहे हो और आपका शुरू से एक मोटिव है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है, गवर्नमेंट जॉब एज इन ये IAS IPS, जो दूसरे वाले एग्जाम्स है उनमें तो नॉर्मल आपका एप्टीट्यूड, मैथ्स, लॉजिकल या आपकी और क्या चीजें होती हैं, पजल्स, ऐसी सी चीजें आती है जो आप बचपन से करते आए हैं, उसमें एज सच इतना आपका सिलेबस मैटर नहीं करता। लेकिन IAS IPS जैसे एग्जाम्स के लिए, IAS जैसे एग्जाम के लिए, उसमें आपके सब्जेक्ट्स मैटर कर जाते हैं। तो अगर आपका शुरू से एम है कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है, तो तब आप उन चीजों को कर सकते हैं कि आप अपने सब्जेक्ट्स को हमेशा अच्छा रखें, ताकि आपको ईजी रहे जब आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए 2 सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, तो आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं आप उनको चूज कर सकते हैं। तो ये चीज वहां पे बहुत हेल्प करती है। गवर्नमेंट एग्जाम कंप्यूटर वालों की थोड़ी सी दिक्कत है इस चीज में, क्योंकि वो लोग एक सब्जेक्ट चूज कर पाते हैं, बट कंप्यूटर्स वाले भी निकलते हैं, बट और स्ट्रीम्स वालों के लिए थोड़ा सा बेटर है इस चीज में। तो आप इस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को एक फेवरेट सब्जेक्ट्स बना सकते हैं और उसके बाद उन्हीं चीजों को आगे गवर्नमेंट जॉब में हेल्प करा सकते हैं। अब एक चीज आती है कि किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए, वेदर इट्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेदर इट्स एनी अदर इंजीनियरिंग, और वेदर यू आर इन गुड इन म्यूजिक और डांस और एनी अदर फील्ड, अगर आप इन सब चीजों में अच्छे हैं, मतलब हाउ कैन यू बिकम अ बेटर और हाउ कैन यू इम्प्रूव फ्रॉम दोज थिंग्स। सबसे पहली चीज तो ये है कि अपना इंटरेस्ट जानो उन चीजों को करने के लिए, क्योंकि आपका हमेशा क्या चीज होती है कि आप लोग ना कहने की वजह से कर रहे होते हैं हम लोग कुछ चीजें, और 12th में हम जब +2 करके निकलते हैं, टू बी ऑनेस्ट हमें किसी को नहीं पता होता क्या करना है। ये बहुत लेम होता है कि हम कह दें कि हाँ मतलब बीटेक का, हमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं से हमने सुना होता है कि हाँ यार ये डिग्री कर लेते हैं, ये डिग्री कर लेते हैं, या फिर हमारे पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं से सुना होता है, हमें कुछ भी नहीं पता होता है तब तक। तो लेकिन धीरे धीरे जैसे आप चीजों को कर रहे होते हैं, आपको समझ आ रही होती है, और मुझे लगता है अपने आप समझ आना जरूरी है, क्योंकि जब तक इंसान ठोकर नहीं खाएगा उसे चीजों की कद्र नहीं होती, उसे पता नहीं चलता कि वो लाइफ में क्या क्या चीजें अचीव कर सकते हैं। तो हमेशा मिस्टेक्स करो, उन चीजों से सीखो और अपना इंटरेस्ट जानो कि नहीं यार मैं इस चीज में शायद नहीं अच्छा था, मुझे इस चीज को करना चाहिए। लोगों से एडवाइस लो कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, लेकिन अपना इंटरेस्ट धक्के से मत करो, क्योंकि क्या होगा, धक्के से अगर कोई चीज कर रहे हो तो 2 सालों के या 3 साल के बाद यू विल स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट इन दैट, एंड उसके बाद आपको लगेगा यार पैसा कमा रहा हूँ सिर्फ, अदरवाइज तो कुछ है ही नहीं लाइफ में। तो ये चीज मत आने दो। टिल द टाइम यू आर वर्किंग फॉर समथिंग, देन यू कैन ऑलवेज डू योर बिजनेस। जिस दिन आपको लगे कि हाँ मेरे पास इतना अच्छा चीजें हो गई है कि आज मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, वो चीजें भी आप ट्राई करो लाइफ में। हमेशा जो भी चीज कर रहे हो उसको इतने पैशन के साथ करो जिस तरीके से अपने रिलेशनशिप्स को निभाते हो। अभी आप लोग कॉलेज में हो, ये चीजें तो हमेशा मतलब, और ट्रस्ट मी आप लोग मानोगे कि ये चीज की ये सबसे बेस्ट रिलेशन रहेगा आपकी लाइफ का, कोई धोखा नहीं, कोई चीटिंग नहीं, और हमेशा एक आप एक कनेक्ट फील कर पाओगे। और जब तक वो कनेक्ट फील नहीं होता किसी भी इंटरेस्ट के साथ, उस चीज में अचीव करना मुश्किल हो जाता है चीजें। और हाँ एक ये चीज होती है, जब भी आप किसी चीज पे काम कर रहे होते हो ना, आपकी जब तक क्वेरीज नहीं आएंगी उसको लेके, स्टूपिड से स्टूपिड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैं एंड्रॉइड में हूँ, मेरे से आके अगर कोई ये पूछे कि व्हाट इज एंड्रॉइड, तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि यार क्या ये बेकार सा क्वेश्चन पूछ लिया। आप लोग ये चीज छोड़ो, हमेशा क्वेश्चन पूछो, चाहे कितना आपको लगे कि यार मैं ये चीज पूछूंगा तो मुझे ऐसा तो ना फील होएगा कि यार मैंने क्या पूछ लिया, बेकार सा क्वेश्चन है, स्टूपिड सा। तो ये चीजें मत आने दो अपने माइंड में, क्योंकि जितना आप चीजों को पूछोगे, जितना क्यूरियोसिटी रखोगे चीजों को जानने की लाइफ में, ये हर फील्ड के लिए अप्लाई होता है, उतना आप उसकी बारीकियां, उतना आप उसके इंटरनल्स, उसके बेसिक्स, उसके लॉजिक्स को जान पाओगे। और जस्ट कीप आस्किंग क्वेश्चंस अपने सीनियर्स को, अपने गूगल ऑलवेज। तो यहाँ पे हमेशा उन चीजों के लिए सर्च करते रहो, कोई एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब वो डाउट आपका आगे चलता रहता है तो आगे जाके आपकी चीजें समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो डाउट पीछे रह गया था। तो पीछे माइंड में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, माइंड आपका हमेशा क्लियर होना चाहिए। जब भी आप किसी को सुन रहे हो या कोई नई चीज सीख रहे हो, तो हमेशा कीप आस्किंग क्वेश्चंस अराउंड इट।
एक ये क्वेश्चन आता है लोगों का कि हमें अपने आप अपने काम स्टार्ट करनी चाहिए या फिर हमें जस्ट एक जो ऑफिस की 9 to 5 वाली जॉब लेनी चाहिए। तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि जब आप कंपनीज के लिए स्टार्ट कर रहे होते हैं चीजें, आप लोग स्टार्टिंग में हमेशा, अगर आज मैं बात करूं, एक फ्रीलांसर की बात करूं जो अपने प्रोडक्ट्स बनाता है, और आप एक 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, मेरे को कोई अपनी चीज बनवानी है आपसे, तो मैं किसे प्रेफर ज्यादा करूंगी? उसे प्रेफर करूंगी जिसको एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आपने शुरू से ही फ्रीलांसिंग अपना ली, फ्रीलांसिंग का मतलब है कि आप घर बैठे हुए अपनी मर्जी से जिस टाइम, मतलब आप अपने एक इंडिविजुअल है, कोई कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है। एक इतना बड़ा यूजर बेस आ सकता है, कितने सारे लोगों के लिए उस चीज को हैंडल करना है, क्या क्या और ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, क्योंकि आपने लोगों से सीखी नहीं नई चीजें, तो आप उन चीजों को नहीं बता पाओगे। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि ये इतने लोगों के लिए अगर मैं बनाना चाहूँ, क्या ये चीज फिजिबल है? अगर मैं ऐसा स्क्रीन रखती हूँ, यूआई रखती हूँ, क्या ये चीजें फिजिबल हैं या नहीं है? लेकिन एक जो काम कर रहा है कंपनी में, वो चीजें देख रहा है, तो उसको शायद इजीली पता होगा। लेकिन आफ्टर 2-3 years यू कैन डू दैट, कि आप अपने लोगों को आप अपने आप, और आप इवन काम करते करते भी फ्रीलांसिंग कर सकते हो। तो आप उन चीजों को 2 साल 3 साल के बाद मैनेज करना स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्टिंग में आप उस चीज को हमेशा ध्यान रखो कि आपको चीजें लोगों से सीखनी है। अगर आप किसी एक, मैं स्टार्टअप की भी बात करूँ, या बड़े बड़े लोग जो ये कंपनी चला के बैठे हैं, ये पेटीएम की बात करती हूँ मैं, ये हमारी, मैं 1mg की बात करती हूँ, इन लोगों ने हमेशा ऐसी कंपनी नहीं स्टार्ट कर दी थी अपनी, इन्होंने पहले और लोगों से सीखा है, 8-10 साल सीखा है, उसके बाद ये लोग अपनी कंपनी स्टार्ट कर पाए हैं। तो वो एक्सपीरियंस हमेशा लाइफ में नीडेड होता है। आपके एज और इंटरेस्ट पे डिपेंड करती हैं ये चीजें कि आपको किस फील्ड की साइड पहले बढ़ना है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये चीज रहा है कि मुझे लगता है कि पहले सीखना जरूरी है, उसके बाद तुम किसी चीज को सिखा सकते हो। अब एक चीज आती है कि आपको कितने कैसे कस्टमर्स के साथ उस चीज को बिल्ड करना है। अब ये सारे जो आपके एक्सपीरियंस है, वो चीजें आपको एक कंपनी ही बता सकती है, आप घर पे बैठे हुए उन चीजों को नहीं सीख सकते हो। जैसे आप एक कॉलेज या स्कूल में हो, तो आप लोग उन चीजों को, बेसिक्स को हमेशा सीखते हो ना। आपकी कोई अर्ली एज कंपनी भी ऐसे ही होती है, आपको छोटी छोटी चीजें सिखाती है, आपको लोगों से डील करना सिखाती है, आपको मार्केट करना सिखाती है आपके प्रोडक्ट को, कि आप कैसे बेच सकते हो चीजों को। तो हमेशा आपको अपनी जॉब प्रेफर करनी चाहिए जब आप स्टार्टिंग में चीजें करने लगते हो, अपने बिजनेस से पहले। एंड जस्ट बिल्ड दैट प्रोडक्ट आफ्टर दैट, एंड उसके बाद आप कहीं भी पहुंच सकते हो। आप चाहे अपनी जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग करो, या फिर आप हमेशा उस चीज को या फिर आप पैरेलली दोनों काम संभालो, आप कुछ भी कर सकते हो। और लोग ऐसा करते हैं। आप डिजाइनर्स को या एंड्रॉइड डेवलपर्स को देखोगे तो फ्रीलांसिंग की इनके पास प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, और आप लोग बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हो, बट सीखना बहुत जरूरी है लाइफ में। उसके बाद आते हैं कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं। जैसे सर्विस बेस्ड में बोलूंगी टीसीएस, इन्फोसिस, ही सर्विस बेस्ड है। सर्विस बेस्ड का मतलब होता है कि जो कंपनी दूसरी कंपनीज को सर्विसेज देती है, मतलब वो हमसे, कस्टमर से सीधा डील नहीं कर रही, यूजर से, वो दूसरी कंपनीज को अपने प्रोडक्ट दे रही हैं, और वो प्रोडक्ट्स को वो बहुत सारे मल्टीपल कंपनीज के साथ डील कर रही होती हैं। लेकिन एक प्रोडक्ट वाली कंपनी होती है, जैसे मेरी 1mg एक हेल्थ केयर कंपनी है, जो ऑनलाइन मेडिसिन, लैब्स और ये सब चीजें बुक करने के लिए आप यूज करते हो। या मैं गूगल की बात करूं, उसकी खुद की प्रोडक्ट है, या मैं बात करूं सैमसंग, तो ऐसी सी कंपनी जो है, ये इनकी खुद की प्रोडक्ट्स हैं, और ये सीधा कस्टमर के हमारे साथ डील कर रही होती है। तो आपके पास कुछ पर्क्स होते हैं इन कंपनीज में काम करने के। आपका जो लर्निंग कर्व है, मैं शुरू से, मेरी तीसरी कंपनी है 1mg, और मैं शुरू से ही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में रही हूँ, तो मैंने शायद इसमें कुछ पर्क्स देखे हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो सर्विस बेस्ड में है। सर्विस बेस्ड में कभी कभी क्या होता है, एक फ्रेशर को ना सीधा ही चीजें पकड़ा दी जाती हैं कि मेंटेनेंस वाली चीजें हो जाती हैं, उसको ज्यादा सीखने को नहीं मिलता, क्योंकि चीजें ना ऑलरेडी बनी हुई है। लेकिन अगर आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हो, तो वहां पे आपकी लर्निंग ग्रोथ बहुत ज्यादा है। आप 6-6 महीने में लोगों को, मैंने एक सॉफ्टवेयर से सीनियर सॉफ्टवेयर बनते हुए देखा है, वो क्योंकि आपको बहुत ज्यादा स्क्रैच से, आपको स्टार्टिंग से चीजें बनाने को मिलती हैं। आपको पता चलता है कि कैसे मुझे डिजाइन बनाना है, कैसे मुझे एक यूजर को हैंडल करना है, कितने लोगों के लिए ये जाने वाला है, तो एक प्रेशर होता है आपके ऊपर। तो ये सब चीजें जो है आपको सीखने में ज्यादा हेल्प करती हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में।
वर्क लाइफ बैलेंस की बात करूं तो सर्विस बेस्ड में आपका एक पर्टिकुलर टाइम होता है 9 to 5, उसके बाद आपको कोई काम नहीं करना होता, आप कुछ भी करिए उसके बाद। लेकिन स्टार्टअप में, क्योंकि आपका जैसे मैं लर्निंग कर्व की बात कर रही हूँ, स्टार्टअप है या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, इसमें आपका कभी कभी आपको रात को भी और वीकेंड पे भी काम करना पड़ता है। और अगर आप इस चीज को एक अच्छे वे में लेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ये चीजें, आप कॉलेज से निकल रहे हैं तो मुझे लगता है ये चीजें सोचनी नहीं चाहिए। आपको जितना काम करने को मिलता है, सीखने को मिलता है, आप सीखिए। स्टार्टिंग में तो वैसे ही हम लोग इतना यंग हॉट ब्लड है कि हमें वार्म ब्लड है कि हमें कोई भी चीज सामने आए, हमें ऐसे होना ही नहीं चाहिए। मतलब एक एज की बात तो मैं मानूंगी, लेकिन आप लोगों के लिए तो ये कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। उसके बाद ग्रोथ की बात है, जैसे मैंने अभी बात की कि सॉफ्टवेयर और सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात की है, तो आप खुद ही देख लीजिए कि इतना जल्दी अगर चीजें क्योंकि आप जहां जितना जल्दी सीख रहे हो उतनी जल्दी आपकी डेजिग्नेशंस बढ़ने का, आपकी प्रमोशन होने के चांसेस होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। जॉब सिक्योरिटी है, अब एक प्रोडक्ट है, मान लो वो चला नहीं, तो हो सकता है कि आपको वहां पे दिक्कत हो। लेकिन जैसे सर्विस बेस्ड कंपनी है, वो बहुत सारी कंपनीज के साथ डील कर रही है, तो एक उनमें से नहीं भी अगर प्रोडक्ट अच्छा चला तो वो और कंपनीज के साथ है। तो कहीं ना कहीं सर्विस बेस्ड कंपनी में आपकी सिक्योरिटी ज्यादा होती है जॉब की। लेकिन अगेन इसको भी मैं कॉन्ट्राडिक्ट करती हूँ। अगर आप अपनी चीज में आपकी स्किल्स इतनी अच्छी है ना, अगर एक कंपनी आज बंद भी हो रही है, आपने तो सीख लिया ना अपना काम, उसके बाद आप उन चीजों को कहीं भी जाके अप्लाई कर सकते हो। तो आप लोगों को कभी ये टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि यार आज की जॉब चली गई तो मैं नेक्स्ट कहाँ कैसे फाइंड करूंगा। आपकी स्किल्स अच्छी है ना, लोग आपको ढूंढेंगे, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है कहीं पे भी। अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको शुरू से आपको सब चीजें खुद से संभालनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपका लर्निंग कर्व ज्यादा होता है। और लेकिन सर्विस बेस्ड में जैसे अगर आपका एक ही काम है तो आपको वही करना है। आपको ये चीज नहीं है कि आपको बहुत सारे काम पकड़ा दिए जाएंगे। तो जिनको चिल लाइफ चाहिए होती है तो वो सर्विस बेस्ड कंपनी को प्रेफर करते भी है कहीं ना कहीं। तो और इसमें कुछ गलत नहीं है, बट इट डिपेंड्स कि आपका एक टाइम पे इंटरेस्ट क्या है। आपको ज्यादा लर्निंग और ग्रोथ एक टाइम पे चाहिए, या फिर ठीक है मतलब मेरे को बस जॉब करना है और मेरा शायद कोई साइड बिजनेस हो सकता है या कुछ भी, तो उस टाइम पे आप सर्विस बेस्ड कंपनी के बारे में सोच सकते हैं चीजें। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कोई ऐसे रूल्स नहीं है, कभी भी आओ कभी भी जाओ, कभी भी छुट्टी लो, आपके 9 to 5 वाला कोई सिस्टम नहीं है। सर्विस बेस्ड में थोड़ा सा इन सब चीजों का होता है, क्योंकि उनको बहुत लोगों को मैनेज करना होता है। तो और कोई यूनिफॉर्म नहीं होती, कुछ भी डाल के चले जाओ, चप्पल भी डाल के आ जाते हैं लोग कंपनी के अंदर, शॉर्ट्स डाल के आ जाते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं जो शायद थोड़े से पर्क्स है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के। लेकिन अगेन आपकी इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपका इस टाइम पे लाइफ में सिर्फ जॉब में अच्छी चीजें करने का, सीखने का इंटरेस्ट है, या आपका खुद का कुछ शायद बिजनेस है और आप उन चीजों की साइड बढ़ना चाहते हो। अब लाइफ में आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, किसी भी फील्ड में हो, कैसे आप उन चीजों को ग्रैब करके अपनी इंटरेस्ट और अपनी स्किल्स को हमेशा इम्प्रूव कर पाते हो। अपने आसपास ना हमेशा अच्छे लोग ढूंढो, सही लोग ढूंढो। अच्छे तो सब होते हैं, हमारे लिए कौन अच्छा है ये अलग बात है, लेकिन अपने आसपास ऐसे लोग ढूंढो जो आपको हेल्प कर पाए। अगर जरूरी ये चीज बहुत जरूरी होती है, अगर आपको कोई मोटिवेट कर पा रहा है ना, अपने आसपास पॉजिटिव लोग रखो। ये वाले नहीं होना चाहिए कि यार ठीक है मतलब हम लोगों को यहाँ पे चीजें नहीं मिलती तो हम शायद नहीं कर पाएंगे, ऐसे लोग कहने वाले नहीं होने चाहिए। अपने आसपास उन लोगों को ढूंढो जो आपको ये कहे कि यार इतना कम मिला है ना, फिर भी देखो हम कहाँ पहुंच पाएंगे। तो इन छोटी छोटी चीजों को ढूंढो। कोई अच्छा सीख रहा है, सिखा रहा है, उसके साथ जुड़ो, उससे चीजें सीखो और उसके थ्रू और लोगों को जानो। और ये हमेशा काम आता है। नेटवर्क हमेशा होना चाहिए, और अच्छा नेटवर्क, क्योंकि आपको पता नहीं है आपको किसकी कब नीड पड़ जाती है। तो ये चीजें हमेशा अभी से करना स्टार्ट करो। लिंक्डइन है, ट्विटर है, यहाँ पे लोगों को फॉलो करो, अच्छे लोगों को, और उनसे सीखो कि वो कैसे लाइफ में अपने एक्सपीरियंसेस, क्योंकि शुरू से ही कोई कोडर पैदा नहीं हुआ था, शुरू से ही कोई बहुत अच्छा डेवलपर पैदा नहीं हुआ था। उन्होंने धीरे धीरे मिस्टेक्स कर करके चीजों को इम्प्रूव किया है। कोई भी आप लैंग्वेज उठाते हो, आप लैंग्वेज देखो, कोडर कोई भी बन सकता है, कोडिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन आपको उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है करने के। एनीवन कैन बी अ डेवलपर, बट बिकम अ एफिशिएंट डेवलपर। आप एक अच्छा डेवलपर बनने का हमेशा ट्राई करो कि आप कैसे कैसे चीजें और सीख सकते हो और अच्छा कोड कर सकते हो, क्लीन कोड लिख सकते हो। क्योंकि एप्लीकेशन तो शायद कोई भी बना देगा, एक बच्चा भी आजकल, आज तो व्हाइट हेड जा रहा है तो लोग बच्चे भी छोटी छोटी चीजें बना रहे हैं। लेकिन उस चीज को इम्प्रूव करते हुए, रोज उसमें नई नई प्रैक्टिसेस लगाते हुए, कोड को कितना अच्छा मैनेज कर पा रहे हो। स्टैंडर्ड होते हैं, हर एक कोडिंग स्टैंडर्ड बना होता है कि आपको इस तरीके से कोड लिखना चाहिए।
अगर आप उन चीजों के साथ, उन प्रिंसिपल्स के साथ चलते हो तो हमेशा आप इम्प्रूव करते रहोगे। और ये हमेशा बदलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नई नई आती जाती हैं और हम उसके अकॉर्डिंग चीजें करते हैं। तो इसका कोई, दिस इज नेवर एंडिंग थिंग फॉर एनी डेवलपर आउट देयर। फीडबैक्स के लिए लोग ये चीज ले जाते हैं कि यार इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, इसने मेरे प्रोडक्ट के बारे में या मेरे ऊपर ये कैसे कमेंट कर दिया। अपने अंदर इस चीज को जितना कम कर सकते हो उतना कम करो, क्योंकि अगर आपको किसी ने फीडबैक दिया है, उसने आपके लिए टाइम निकाला है, ये पॉजिटिविटी लेके आना जरूरी है। अगर आपने कुछ मिस्टेक किया है, मान लो अगर आप उस चीज को सुधार लेते हो तो नेक्स्ट टाइम शायद कोई और उसको देख के कहेगा यार ये तो बहुत अच्छी चीज की हुई है। तो ये हमेशा एक पॉजिटिव वे में लेना सीखो फीडबैक्स को, कि आपको कोई समझा रहा है या सिखा रहा है तो वो चीज आपके काम ही आएगी। कोई कभी अपनी ईगो पे मत लेना, हम कुछ भी नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। इज्जत बनाने के लिए ही आप और लोगों से चीजें सीखते हो और करते हो, तो उस इज्जत को बनाने के लिए ही आप लोग मेहनत करो। इससे पहले आपकी कोई इज्जत नहीं है कि इज्जत पे आ गया यार कि मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया, मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, मेरी चीज को ऐसे कैसे डिसलाइक किया। ये चीजें कभी मत आने देना अपने अंदर। जब तक ये चीज रहेगी ना, आप लोग हमेशा लाइफ में सीखते रहोगे चीजें। रोज कुछ ना कुछ नया सीखो हमेशा ना। एक लाइफ में, जिस दिन मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी, जिस दिन आप लोग इस चीज को लेके स्टेबल हो गए ना कि आपको सब कुछ आता है, उस दिन आप लोग शायद लाइफ में कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। हमेशा इतनी चीजें टेक्नोलॉजी में या लाइफ किसी भी फील्ड की बात कर लो, आप हर फील्ड में नई नई चीजें आती रहती हैं। अपने आप को अप टू डेट रखना बहुत जरूरी है। हर चीज को नहीं सीख सकते, लेकिन जो भी चीज सीख रहे हो ना, उसकी बारीकियों को, उसके इंटरनल्स को सीखो कि यार ये एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, ये आया ही क्यों है, लाइक पर्पस ही क्यों है, इसको क्यों बनाया गया है। उन चीजों की क्यूरियोसिटी रखो रोज, और उन चीजों के ऊपर ध्यान दो कि अगर मैं बनाता, क्या मैं इस चीज को बनाता, या क्या मैं अगर बनाना चाहूं या मैं बनाती तो क्या मैं इससे अच्छा बना सकती हूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आओ अपने अंदर हमेशा करने के लिए लाइफ में। और चीजों से, गलतियों से, अपनी गलतियों से सीखो। क्योंकि क्या होता है कि हमें लगता है हमारी पहली बार में ये चीजें सक्सेसफुल हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। अगर शुरू में ही हो गया ना तो आप कभी भी उन चीजों से सीख नहीं पाओगे। तो इसलिए हमेशा लाइफ में फेलियर बहुत जरूरी है। कभी भी आपको ऐसा लगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उस चीज को मत आने दो। या आपके अंदर अगर ये भी रीजन है ना कि यार मैं तो बिहार से हूँ, शायद ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं होगी और मैं इस चीज को मतलब मेरी तो लाइफ ही ऐसे है, आप ये चीज सोचो ना, आप उससे उभर कैसे सकते हो। अगर आप किसी जगह पैदा हुए हो जहाँ शायद टेक्नोलॉजी कम है और स्टेट्स या और सिटीज की कंपैरेटिवली, आप उस चीज को अपनी पॉजिटिव स्ट्रेंथ बनाओ। मैं अगर अपनी बात कर रही हूँ, मेरे पास चीजें अवेलेबल नहीं थी, मेरे पास अब अवेलेबल है चीजें, मेरे पास शुरू में अवेलेबल नहीं थी बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं अगर उस चीज को अपना ये बना के बैठ जाती, रीजंस ना हमेशा लाइफ में खराब करते हैं चीजों को। जितने कम रीजंस रखोगे ना कुछ चीज को करने ना करने के, उतना लाइफ में सक्सीड कर पाओगे। मैंने डिप्लोमा किया है आफ्टर 12th नहीं की मैंने 10th के बाद डिप्लोमा किया था, और उसकी वजह से मेरी काफी जगहों पे, मैं एक यूनिवर्सिटी टॉपर रहते हुए भी मुझे जॉब का कुछ ऐसा नहीं था मेरा उस टाइम पे, क्योंकि मैं टेक्निकल राउंड सारे क्लियर कर जाती थी, बट HR राउंड में मुझे बोल दिया जाता था कि आपके पास 12th की डिग्री नहीं है। उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार ये चीज तो बहुत गलत हो रही है, मतलब मेरी स्किल्स को नहीं देखा जा रहा। लेकिन मुझे शायद एक चीज सिखाई गई थी बचपन से ही कि हमेशा अपना पार्ट करो, हार्डवर्क अपनी साइड से तुम एक चीज कर सकते हो, अपनी हार्डवर्क करो। ऐसा टाइम आएगा कि लोग तुम्हें पूछेंगे, और उन्हीं कंपनीज ने मुझे 1-1.5 साल के बाद खुद से अप्रोच करना स्टार्ट किया। और इवन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन में इनकी बात करूँ तो आई हैव बीन अप्रोच्ड बाय दीज कंपनीज एज वेल। ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है कि मैं अभी शायद NCR से बाहर नहीं जाना चाहती, बट आप अपने आप को इस तरीके का बनाओ कि लोग आपको अप्रोच करना स्टार्ट करें, और वो चीजें आप अपने फेलियर से ही सीखते हो कि मैं अच्छा कैसे कर सकता हूँ और अच्छा कैसे कर सकता हूँ। लाइफ में गिरोगे तभी आगे बढ़ोगे। अपने गोल्स को सेट करने के लिए मैं आज आपको एडवाइस कर सकती हूँ, आपको आके आपके सीनियर्स एडवाइस कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद को अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा कि मैं अपनी लाइफ में चीजों को अच्छा कैसे कर सकता हूँ। मेरा एक गोल होना चाहिए, हमेशा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए लाइफ में कि आप मुझे यही करना है। और मान लो आपके पास 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप गाने में भी अच्छे हो, आप कोडिंग में भी अच्छे हो, और आप स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो।
हर फील्ड को ट्राई करो, ऐसा नहीं है कि आप, बट एक टाइम पे किसी एक को अपना गोल बनाओ, उसमें अपने आप को देखो कि मैं अच्छा कर सकता हूँ या नहीं, उसमें अच्छा कर गए, उसके साथ साथ पैरेलली और चीजों को भी अच्छा करो। लेकिन एक साथ बहुत सारी चीजों में कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए आपका एक गोल होना चाहिए कि अगर मेरा लाइफ में ये चीज मुझे करना है तो मैं इसकी साथ साथ बाद में ये चीज ट्राई करूंगा या पैरेलली कर सकता हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना तो ये मेरे को लगता है शायद सबका ही गोल होता है, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है शायद इस चीज से, लेकिन अगर आप इमोशनली इन चीजों को देखोगे तो पेरेंट्स बहुत सारी चीजें करते हैं और हम शायद उन चीजों को कभी पे बैक नहीं कर सकते, बट ये पे बैक नहीं हुआ, लेकिन आपकी शायद आप बचपन में शायद कभी फर्स्ट या सेकंड या कुछ भी ऐसा आते हो गया, टीचर्स ने अच्छे मार्क्स दे दिए, तो जो खुशी शायद उनके फेस पे होती है ना, उस चीज को हम कभी नहीं लेके आ सकते। तो आपका हमेशा लाइफ में एक गोल रहना चाहिए कि आप उनको हमेशा प्राउड फील कराओ। आप छोटी सी भी चीज करोगे ना, वो उससे भी खुश होंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा हर एक को एक गूगल या माइक्रोसॉफ्ट इन सारी कंपनीज में जाना है। आप कहीं पे भी होगे, वो हमेशा आपको पॉजिटिव ही बोलेंगे कि यार हमें अच्छा लग रहा है, हम हमारे बच्चे इन चीजों के लिए हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं कि अगर हमने उनके लिए लाइफ में कुछ किया है। बाकी मेरा आप लोगों से सिर्फ एक यही चीज होगा कि मैं बहुत बार अभी बात करते हुए भी ये चीज कहा कि आपको लोग गाइड कर सकते हैं, लेकिन अपनी डेस्टिनी आपको कैसे लिखनी है ना, ये सिर्फ आप ही बता सकते हो। आप ही अपनी डेस्टिनी के मास्टर हो। आपको ये डिसाइड करना है कि आज मेरे को ये गोल अपनाना है या ये अपनाना है, या मेरी लाइफ के लिए ये चीज अच्छी है या बुरी है। लोग सिर्फ आपको आके समझा सकते हैं। तो उन चीजों को हमेशा अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। अपनी हर वीकनेस को ना स्ट्रेंथ में, कोई आपसे पूछता है ना कि मेरी वीकनेस या स्ट्रेंथ क्या है, कभी उसे ये मत बताओ। जैसे आपको मान लो गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, कभी उसको ये मत बताओ लाइफ में कि मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। उसको इस तरीके से मोल्ड कर दो कि मेरा कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता, लेकिन मैं उन चीजों पे काम कर रहा हूँ। हमेशा अपनी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो और उन चीजों को लेके जाते हुए अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो। तो मुझे ये लगता है कि ये सबका एक होना चाहिए। जब भी हम लोग बचपन से ये चीज को रखते हैं, तो आप लोग अपनी डेस्टिनी सिर्फ खुद लिखते हो। ये नहीं होता कि किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता। ये बिल्कुल किस्मत पे बिलीव करना बहुत गलत चीज होती है। अपनी डेस्टिनी ना, लोगों ने अपने आप को, आपने भी देखा है ना, चाय वाला हमारा प्राइम मिनिस्टर है, कैसे बने हैं वो। उन्होंने, उनकी डेस्टिनी में तो चाय बनाना लिखा था, ठीक है, तो वो चाय पिलाना लोगों को, ठीक है। या हम लोग ये सोच के बैठ जाए कि यार लाइट्स वाइट्स या टेक्नोलॉजी नहीं है मेरे यहाँ पे, तो यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा ये चीजें। ऐसा कभी नहीं होता। आपको पता होता है आपको चीजें कैसे करनी है। आप एक कैंडल के अंदर भी पढ़ोगे, मैं टॉर्च के अंदर पढ़ती थी। कैंडल्स होंगी ना, उन चीजों में भी आप अपनी अपनी आप टॉप कर जाओगे या आप अपनी चीजों में एक्सेल कर जाओगे। मेरे को अतुल ने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी, शायद उस टाइम पे मेरे लिए एक रिस्पेक्ट बढ़ गई थी उनके लिए भी, कि उन्होंने कुछ लोगों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप ना होते हुए भी लोगों को बोला कि फोन से सीखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है स्मार्टफोन्स आजकल सबके पास अवेलेबल है। और उन्होंने कहा फोन से सीखते हैं, ये वेब डेवलपमेंट जो था। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने पता नहीं कितने लोगों को ये बात बताई है कि जिसमें चाह होती है ना कुछ सीखने की, उन्होंने आपको एक सॉल्यूशन दिया, लेकिन उस सॉल्यूशन को कुछ लोगों ने अपनाया। शायद वो अतुल से भी बड़े हुए कि उनके अंदर वो चीज सीखने की भूख थी कि भाई मुझे सीखना है, मुझे करना है लाइफ में, और उन्होंने उस चीज को करा। मुझे उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने आप लोगों में से वेबसाइट के ऊपर भी काम किया है। ये बहुत बड़ी चीज है। अब आप खुद देखो कि आपने अपनी नेगेटिव चीजों को, आपके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा अवेलेबल नहीं थी, फिर भी आप लोगों ने उन चीजों को ओवरकम करके किया है। तो कोई भी कर सकता है इस चीज को। तो मुझे लगता है ये चीज हर एक के अंदर होनी चाहिए। बस मेरे को लगता है मैंने बहुत बोल लिया। बाकी अब आप लोगों के कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी थोड़ी सी आज तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे कोल्ड है, बट मुझे था कि मुझे आप लोगों से बात करनी है, क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट लेवल पे हमेशा इस चीज का रहा है कि मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करना, उनसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू जानना कि इस टाइम पे आप लोग क्या चीजें फेस कर रहे हैं और कैसे उन चीजों से निकल सकते हैं। सो थैंक यू इतनी देर सुनने के लिए मुझे। मैम, इट वाज वेरी नाइस सेशन। थैंक यू। अभी कोई भी अगर क्वेश्चन है, आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं, देखिए लोग होगा कि आप लोग के पास ऐसे कुछ टाइम आए तो आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। और आप लोग मुझे लिंक्डइन या ट्विटर पे शायद अतुल ने आप लोगों को भेजा होगा। ऑलरेडी शेयर्ड मैम।
हाँ, आप लोग मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई करती हूँ, अपनी साइड से कोशिश करती हूँ कि मैं सबको रिप्लाई करूँ। और कुछ भी आपका कोई डाउट होता है, कभी भी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके, आप लोग मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, एनी क्वेश्चंस? नहीं किसी? मुझे लग रहा है स्टूडेंट लेवल पे थोड़ा ऐसा होता है ना, एक डर होता है। तो आप लोग ऐसे नहीं डरिए, मेरे को तो आप देख ही रहे हैं मैं कैसे बात कर रही हूँ आप लोगों से, कोई आपको जज नहीं कर रहा है यहाँ पे। कुछ भी, मैंने अभी बोला, आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। स्टूपिड क्वेश्चन भी होगा ना, उसको भी पूछो, आपको लग रहा होगा वो स्टूपिड है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन खराब नहीं होता, गलत नहीं होता। मैम इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग कैसा होगा? इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग कोई भी इंजीनियरिंग या कोई भी फील्ड खराब नहीं होती, लेकिन अभी आप क्या कौन से ईयर में हैं? मैम अभी मेरा मतलब एनआईटी जालंधर में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग ब्रांच मुझे मिला है, ठीक है। और बिहार इंजीनियरिंग में एमआईटी में हमको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिलने का चांस है। तो मुझे इंटरेस्ट है मतलब कोडिंग में। मैं अपना 8th क्लास में मैं अपना मतलब एक ऐप बनाकर गूगल प्ले स्टोर में वेबसाइट वर्डप्रेस सबका मतलब आइडिया हो चुका है, ठीक है। मतलब मेरा कोडिंग में इंटरेस्ट है मुझे, लेकिन मुझे मतलब वो लोग बोल रहे हैं एनआईटी तो एनआईटी का सिंबल है, एनआईटी का वैल्यू है, इसलिए एनआईटी में जाओ। मेरा अपने अंदर से मन कर हाँ मुझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जाएंगे कुछ आगे कुछ कर पाएंगे। कॉलेज ना कभी-कभी जब स्टार्टिंग में आप होते हो ना एज अ फ्रेशर, ये सिर्फ तब तक मैटर कर रहा होता है। उसके बाद आप लोग ये सोच लीजिए कि आपकी स्किल्स ही मैटर कर रही होती है। 3-4 साल के बाद कोई कॉलेज नहीं पूछता, कोई डिग्री नहीं पूछता। उसके बाद अगर आप अच्छा काम कर रहे हो ना, लोग आपके पास आते हैं कि आपको मैं आपको बता रही थी ना अभी कि मैं डिप्लोमा किया मैंने, तो मुझे कंपनीज ने रिजेक्ट किया था इस वजह से कि मेरे पास डिप्लोमा है। उसके बाद लोगों ने उस चीज को मेरे को 1-1.5 साल बाद, क्योंकि मेरी नॉलेज और इन सब चीजों को देखते हुए मुझे खुद अप्रोच करना स्टार्ट किया। उस टाइम वो चीजें मैटर नहीं कर रही थी। लेकिन अगर आपको आईटी में इंटरेस्ट है तो मुझे नहीं लगता कि बिहार इंजीनियरिंग भी आपके लिए कुछ क्योंकि आप ऑलरेडी आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। आप बोल रहे हो आपने 8th में एक ऐप बना दी, तो आप ये सोचो कि उन चीजों को लेते हुए आप अगर आप शायद आईटी फील्ड से ही जुड़े रहोगे तो आप और भी ज्यादा अच्छा सीख सकते हो, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। अदरवाइज क्या होगा शायद लेकिन ऐसा भी नहीं है, लोग ये भी करते हैं कि वो दूसरी फील्ड में रहते हैं लेकिन अपना काम नहीं छोड़ते। तो ये ना आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आज आप इंस्ट्रूमेंटेशन में चले जाते हो, उसके बाद भी क्या आपका वो पैशन और आपका वो डेडिकेशन बरकरार रह पाएगा? वो चीज रहना बहुत जरूरी है। वो अगर आप आईटी में रह के भी नहीं कर पाओगे और आप इंस्ट्रूमेंटेशन में रह के भी कर पा रहे हो, तो आपका एनआईटी में जाना कोई गलत नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर अपना आईटी का तो मत छोड़ना, आईटी वाला चीज को तो मत छोड़ना, क्योंकि आप अगर इतनी छोटी एज में अच्छा कर सकते हो तो अभी तो आप फोड़ दोगे, अभी तो आप बहुत कुछ अच्छा कर दोगे उस चीज में। और लाइफ में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कभी जाने नहीं वाला, एंड्रॉइड एप्लीकेशन एंड्रॉइड कभी नहीं जाने वाला, क्योंकि स्मार्टफोन्स हर कोई यूज कर रहा है। तो उन चीजों को अपना और ज्यादा इम्प्रूव करो, बाहर से देखते हुए सीखते हुए। जरूरी नहीं है कॉलेज ही हर चीज सिखाता है, आपका नेटवर्क बहुत कुछ सिखाता है आपको, तो उन चीजों से सीखो। तो इतना ज्यादा कॉलेज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ मतलब इस चीज का ज्यादा 1-2 साल में आपको प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद तो लाइफ सेट है आपकी। मैं अभी से बोल रही हूँ इस चीज के बारे में आपको। हेलो मैम। हाय मैम, जैसे आपने बताया कि एक गोल सेट करो, ठीक है, तो मैंने वो गोल भी सेट कर लिया। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि मार्केट में टेक्नोलॉजीज बहुत सारे आते रहते हैं, तो उसमें हम लोग मतलब कि वो भटक जाते हैं कि हमको ये भी करना है वो भी करना है। उसके बाद हम लोग अपने गोल से भटक, मैम उसको कैसे मतलब कि अपने गोल पे कैसे फोकस करना चाहिए? मतलब वो इतने सारे टेक्नोलॉजीज जो आ जाते हैं तो हम लोग उसमें फिर चले जाते हैं, वो भी हम लोग को करना जरूरी है। तो उस चीज में हम लोग मैम फिर भटक जाते हैं। देखो, जब आप 4 साल बाद हटोगे ना कॉलेज से, तब तो सब कुछ चेंज हो चुका होगा, और भी ज्यादा चेंज हो चुका होगा। टेक्नोलॉजीज हमेशा चेंज होती रहती हैं। मैंने जावा से स्टार्ट किया था, एंड्रॉइड की अगर बात करूं तो एंड्रॉइड में कॉटलिन आ गया। यस मैम। लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं वो सीधा कॉटलिन कर रहे हैं, ठीक है। हम पास कर देते हैं, हम मुझे लगता देखे है मैंने लाइफ में कभी लैंग्वेज मैटर नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि आप एक बात याद रखो, अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है ना, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स या मैं बार-बार इस चीज पे फोकस कर रही थी कोडिंग और डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर, अगर आपका ये चीज स्ट्रांग है ना, आप किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हो। लैंग्वेज आपका कभी भी बैरियर नहीं होना चाहिए लाइफ में कि यार अच्छा मुझे आज ये करने के लिए बोला गया था लेकिन अब मैं इस चीज को कैसे अचीव करूं, ये कभी नहीं होना चाहिए। इसको कभी मत सोचना कि ये मेरे को शुरू से ही ना कभी ये मत सोच के चलना कि मुझे पाइथन करनी है, मुझे पीएचपी करनी है, मुझे नोड करनी है। आपको हमेशा अपना फोकस डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट करना चाहिए कि उसका जो एबीसी है ना, मुझे वो अच्छे से सीखना है कि अगर मैं लास्ट ईयर में हूं ना, अब मैं कोई भी टेक्नोलॉजी कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने शुरू से ही सिर्फ एक लैंग्वेज सीखी ना, लैंग्वेज क्या करती है मैं बताती हूँ आपको। लैंग्वेज ना आधी चीजों को, आधा कोड ना आपको लिखना नहीं पड़ता, अंदर ही उसका कोड लॉजिक हुआ होता है, तो आपको पता है, आपको करना ही नहीं पड़ता कुछ। जैसे फोर लूप है, अगर आप कोडिंग में मैं बात करूँ, आप फोर लूप लिखते हो ना, उसमें क्या होता है, फोर लूप का भी एक आ जाता है कि आपको फोर लूप भी लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसका एक मेथड बना हुआ है। आप कभी सीख पाए अगर आपने शुरू से फ्रेमवर्क्स मैम, दैट इज फ्रेमवर्क्स मैम। हाँ, आपको कोई भी, आपको क्या हुआ कि आपको उन चीजों पे सीखना ही नहीं पड़ा जाके अंदर, आपने कभी जाना ही नहीं कि उसमें अंदर इंटरनली हो क्या रहा है। तो हमेशा वो चीजों से स्टार्ट करो जो बेसिक्स है हर लैंग्वेज के। और लैंग्वेज ना कुछ भी नहीं है, जैसे आप हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी, उर्दू, ये सारी लैंग्वेजेस है ना, लेकिन इंटरनली इमोशंस तो सेम होते हैं ना। उन इमोशंस को जानने की कोशिश करो। टेक्नोलॉजी हमेशा अपने लास्ट ईयर में देखो कि अब किस चीज का स्कोप बढ़ रहा है या किस चीज में मेरा इंटरेस्ट जा रहा है, मैं उस चीज से अपनाऊंगा। अपना डेटा स्ट्रक्चर्स पे फोकस रखो। तो बट मैम जब जैसे मैम हम लोग जब से कॉलेज इन किए तो उसमें बताया गया है हम लोग को क्या कोई एक लैंग्वेज पहले डन करो, उसके बाद आगे मतलब कि डाटा स्ट्रक्चर में जब हम लोग थर्ड सेमेस्टर में थे तो उसमें हम लोग को पढ़ाया गया था डाटा स्ट्रक्चर। तो हम लोग को पहले बोला कि कोई एक लैंग्वेज अच्छे से उसको सीख लो जाके आगे फील्ड में मतलब आगे किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में आपको काम देगी। तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। जब आपको जॉब के लिए आती है ना कंपनी, वो ऐसा नहीं बोलती कि हम इस लैंग्वेज में आपको काम कराएंगे। वो आपका डेटा स्ट्रक्चर्स इन सब चीजों पे टेस्ट लेती हैं। आप अपनी कोड शेफ, हैकर अर्थ, हैकर रैंक, लीड कोड, इनके ऊपर आप अपना काम कीजिए। उससे आप वो कंपनीज ऐसा नहीं होती, बहुत कम ऐसी होती है, क्योंकि उन्हें भी पता है ना कि वो आप लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कि इन्होंने पहले से ही कौन सी लैंग्वेज इतनी ज्यादा कर रखी होंगी। मतलब मेरे कॉलेज में तो ऐसा नहीं था। एक दो कंपनीज थी जिन्होंने जावा के बारे में पूछा, प्लस पॉइंट हो जाता है। लेकिन आप ये देखो ना कि आप अपने लास्ट ईयर में, कंपनी तो लास्ट ईयर में आने वाली है ना, डेटा स्ट्रक्चर को अपने प्रैक्टिकल 6 महीने में तो प्रैक्टिकल कभी हो नहीं जाता ना, आप उसको इम्प्रूव तो कर नहीं पाए। तो आप उसको पकड़ो, थर्ड सेमेस्टर से उसको पकड़ लो, लेकिन उसके ऊपर काम जरूर करते रहो आगे भी। वो कभी खत्म नहीं होता। वो अभी तक, मैं 5 साल अगर मुझे हो गए डेटा स्ट्रक्चर्स, अभी तक है। डेटा स्ट्रक्चर्स जाने ही नहीं वाला। अभी ना कंपनीज, आपकी हर कंपनी, हमसे भी आज तक डेटा स्ट्रक्चर्स का पहला राउंड ही उनका डेटा स्ट्रक्चर्स होता है। मैं भी डेटा स्ट्रक्चर्स का पहला राउंड लेती हूँ जो मैं इंटरव्यू लेती हूँ। तो डेटा स्ट्रक्चर्स तो मस्ट है। आप अगर आपने उसमें अगर एक्सेल कर लिया ना, अगली फील्ड में लोग सोच लेते हैं कि यार ये लॉजिक तो अच्छा लिख लेता है, तो लैंग्वेज तो मैं कोई भी काम पे दूं ना इसको कराने के लिए, तो ये कर लेगा, ये कर लेगी, ठीक है। तो उस तरीके से अपना माइंडसेट रखो कि आपको लैंग्वेज सीखनी है, सीखो, बिल्कुल सीखो, लेकिन स्टार्टिंग अपनी बेसिक से करो। स्टार्टिंग हमेशा डेटा स्ट्रक्चर से करो। लैंग्वेज अपनी लास्ट ईयर या जो आपकी वेकेशंस होती हैं सेमेस्टर के बाद, उसमें सीखो, उसमें करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स्ट्रा होना, प्लस होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना बेसिक्स मत छोड़ो कभी भी। यस मैम। मैम अगर मेरा एक फील्ड मेरा फिनिश हो गया तो मैम दूसरे फील्ड में हम मूव कर सकते हैं ना? बिल्कुल, कभी भी। मैं आज अगर बैकएंड में जाना चाहूँ, मैं जा सकती हूँ कभी भी। आपको आपके अंदर सीखने का होना चाहिए कि आपने एक फील्ड मिस करी है। मिस कभी नहीं होता कुछ भी ऐसा, मिस वर्ड मत रखो अपने इसमें कि आपको आपका इंटरेस्ट जिस दिन जागता है ना, आपको ये होता है कि मुझे डेटा साइंस में जाना है, या मुझे एंड्रॉइड में जाना है, या मुझे बैकएंड के लिए काम करना है, आप कभी भी कर सकते हो, कभी भी उस लाइन में जा सकते हो। यार मैं 5 साल अगर एंड्रॉइड कर रही हूँ, लेकिन आज भी मैं अगर बैकएंड सीखना चाहूँ, मैं सीख सकती हूँ उस चीज को। तो ये आपका लेकिन वो चीज आप तभी कर पाते हो जब आपके स्किल्स एक वो आपका बेसिक स्ट्रांग होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे मैं अगर बैकएंड की बात करूँ, उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत यूज होता है, तो वहां पे आपका फिर वो चीज काम आती है कि अगर आपने बचपन से ही उस चीज को अच्छे से रखा था, तो आज आप उस चीज में कभी भी मूव कर सकते हो। थैंक यू मैम। डन राहुल? यस डन।
हाँ डन। मैम एक क्वेश्चन आ रही है मैम। मैम कैन यू टेल समथिंग अबाउट इंटर्नशिप? यस मैम। इंटर्नशिप जो होता है ना, इंटर्नशिप में भी आपका आधी कंपनीज क्या करती हैं कि वो लोग वही नॉर्मल राउंड्स लेती हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स या पजल्स पूछती है, ये सब चीजें, बस इतना ही होता है। बहुत ज्यादा वैसा वाला इंटरव्यू नहीं होता है कि हाँ। लेकिन अगर आपकी कंपनीज कॉलेज में नहीं आ रही है, ऑफ कैंपस के लिए भी कंपनीज इंटर्न्स रखती हैं 6 मंथ्स के लिए। तो वही है, बेसिक्स तो मैं हमेशा कहूंगी आपको इन चीजों करने के लिए। वहां पे कभी कभी आपका एक प्लस पॉइंट आ जाता है कि आपने लास्ट ईयर में किसी लैंग्वेज पे काम कर लिया, तो वहां और अपना ना हैकर रैंक, लीड कोड, इन सब पे ना, कोड शेफ, इन सब पे अपनी रैंक बनाना अच्छी स्टार्ट करो। लिंक्डइन पे एक्टिव होना स्टार्ट करो, वहां से लोगों को जानो। एचआर्स ना आपको खुद कांटेक्ट करेंगे, वहां इतनी सारी जॉब्स आती रहती हैं, वो लोग पोस्ट करते रहते हैं, क्योंकि क्या होता है उनको भी इंटर्न्स को कम पे करना पड़ता है, और आप लोगों को कोई अपना प्रोजेक्ट करने को मिल जाता है, तो वो लोग इंटर्न्स हायर करते हैं 6 महीने के लिए, और वहां पे आप लोग इतना कुछ सीख जाते हो ना। मैंने इंटर्नशिप, मेरा मेरा ये बेस ना इंटर्नशिप ही रहा है। मेरा लास्ट सेमेस्टर जो था मेरे कॉलेज में, वो इंटर्नशिप था। हमारी तो कॉलेज में आई थी कंपनी, बट ये जरूरी नहीं है। मेरी जो रियल जॉब है वो ऑफ कैंपस है, और टचवुड मेरी बहुत अच्छी जॉब पे स्केल और हर चीज के साथ हुआ था। तो ऐसा भी कोई ये वो नहीं है कि कॉलेज की कैंपस प्लेसमेंट ही हमेशा नीडेड होती है। इंटर्नशिप्स के लिए हमेशा आप लोग अपने नेटवर्क को अच्छा स्ट्रॉन्ग करो। आप लोग अपना रिज्यूमे इतना अच्छा बनाओ। रिज्यूमे अच्छा कैसे कर सकते हो? सिर्फ करिकुलम से नहीं चलेगा, एकेडमिक से नहीं चलेगा। उसमें ये जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, कोडिंग अच्छी करने का और ये सब चीजें करो। आप स्पीकिंग स्टार्ट करो। मैंने अतुल को ही बोला कि अपने जैसे रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी टीम के अंदर लेके आओ, और वहां पे आप जितना कॉन्फिडेंस, मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस, मैं आज आपसे बात कर पा रही हूँ, मेरे अंदर नहीं था इतना। मैं बहुत स्टेज फोबिया रही हूँ इन चीजों के लिए। जितना आप चीजों को शेयर करते हो ना किसी के साथ, आपकी लर्निंग और बढ़ती है। आप अगर आप नेक्स्ट टाइम मुझसे कोई वो क्वेश्चन पूछेगा ना, क्योंकि मैंने किसी के साथ कुछ शेयर किया हो, ऐसे बता दोगे आप 1 मिनट में। तो ये सब चीजें करना स्टार्ट करो, टॉक्स देना स्टार्ट करो, लोगों के वेबिनार्स अटेंड करना स्टार्ट करो, उनसे पूछो। आप जितना नेटवर्क बना लोगे ना, अपने आप ही वो आपको बताना शुरू कर देगी कि मेरी कंपनी में हायरिंग है, मेरी ये सब चीजें चल रही है, और यही चीजें, स्किल्स आपको नीडेड है इसको करने के लिए। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं उस चीज के अंदर। तो और अपने सिर्फ कॉलेज की उस पर मत रहो कि कॉलेज की प्लेसमेंट्स ही हमेशा नीडेड है, या कॉलेज से नहीं हुई तो क्या करेंगे लाइफ में। उससे ज्यादा बेटर सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं कभी कभी इन चीजों को करने के लिए। ओके मैम, आई थिंक ओके। यार मेरे एक चीज खराब लग रही है, किसी लड़की ने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। लड़का लड़की वाला नहीं मैं करूंगी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है डाइवर्सिटी हर जगह नीडेड होती है। आप लोग जब तक अपनी, मैं अपनी कंपनी में शुरू से अकेली डेवलपर रही हूँ। 8 डेवलपर्स में से 8 या 10 डेवलपर्स होते हैं, लड़के होते हैं, और अकेली रही हूँ। शायद मैंने अपनी वॉइस ना रेज की होती ना, तो मैं आज जहां हूँ शायद ना होती। मुझे मेरी आवाज दबा दी गई होती, या मैं क्योंकि ये लड़कों के लिए ऑफेंसिव बात नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया थोड़ा सा मेल डोमिनेटिंग रहा है शुरू से। एक ये चीज रही है उस चीज में। तो बट लड़के भी लड़कियों को बहुत बढ़ावा देते हैं, और मेरे को ये बताया गया कि इस टीम में बहुत सारी लड़कियां हैं जो आज की सेशन के लिए एक्साइटेड थी, बट मुझे वो एक्साइटमेंट दिख नहीं पा रहा है। तो आप जब तक आप लोग मुझे या किसी और को नहीं बताओगे ना कि यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड यू आर नॉट रेजिंग योर वॉइस, तो वो चीज और गलत हो जाएगी, क्योंकि हमारा प्रोपोर्शन ऑलरेडी कम है। हम लोग वैसे ही माइनॉरिटी में है कि अगर 100 लड़के हैं तो 10 लड़कियां होती हैं। अगर वो 10 लड़कियां भी नहीं बोलेंगी ना तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का। दिव्या, मैम आई एम दिव्या। हाँ जी मैम, ऐसा कि मतलब कुछ हम करते हैं तो शुरू में इंटरेस्ट रहता है और बाद में वो धीरे धीरे कम हो जाता है, वैसे उसको कैसे दूर करें? इंटरेस्ट वाली बात तो देखो, अब मेरे को एक चीज, मैंने इसका बहुत छोटा सा वो लेती हूँ कि आप ना टेक से हटा दो इस चीज को, ठीक है? आप लेके आ जाओ, आपको अच्छा टेक के अलावा और लाइफ में क्या अच्छा लगता है? कुछ भी कुछ भी करते हैं डांस, बट कुछ दिन बाद वो अच्छा नहीं लगता। मेरे को जैसे लगता है कि ये नहीं कर पाऊंगी। ऐसे क्यों लगता है? लेकिन वो कहीं आप बाहर लोगों को उससे ज्यादा करते हुए देखते हो, या आपको
कोई चीज नहीं समझ आ रही होती तो आप डर जाते हो, ऐसा? यस मैम, ऐसे ही होता है कुछ। नहीं, तो वो वाला चीज ना आपकी भी गलती नहीं है, वो हर एक के साथ होता है, वो लड़का या लड़की का भी कुछ वो नहीं है, सबके साथ ये चीज होती है। हमें ये चीज मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरा किसी चीज से इंटरेस्ट लूज हुआ हो, लेकिन वही चीज है कि आपको अगर किसी एक चीज में इंटरेस्ट नहीं है ना, तभी आप शायद दूसरे ऑल्टरनेटिव्स अपनी लाइफ में अपना पाते हो कि अगर मेरा वहां इंटरेस्ट अच्छा नहीं जा रहा ना, तो शायद इस चीज में अच्छा हो। तो ये चीज शायद आपकी वहां पे आपको हेल्प करती है, लेकिन इंटरेस्ट लूज होने वाला इस वजह से कि आप लोग इसमें अच्छा नहीं कर पाओगे या मेरे से अच्छा कोई और कर रहा है। आपका कंपटीशन ना आपके खुद से होना चाहिए, कभी किसी और से नहीं रखना, क्योंकि उसका आप उसके शूज में नहीं हो और वो आपके में नहीं है। आपके साथ आपकी लाइफ की जो सिचुएशंस है वो दूसरे के साथ नहीं होती हैं। तो हमेशा ना उस चीज को सिर्फ अपने लिए सोचो कि आप रोज अपनी साइड पे कैसे इंप्रूव कर सकते हो उस चीज को। अगर जिस दिन आपका कंपटीशन आपके खुद से होगा ना, तो ऑब्वियसली किसी दिन आपने अच्छा किया ना, तो नेक्स्ट डे आप उससे बेटर ही कर रहे होगे। तो उस चीज को ना उस तरीके से इंप्रूव करना स्टार्ट करो कि मेरे को ना लाइफ में कोई चीज अगर गोल सेट करना है ना, तो मुझे वो चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 100 होना चाहिए, कभी भी 70, 80, 90 नहीं होना चाहिए किसी भी चीज के लिए। अदरवाइज इसका मतलब आप सही लाइन में नहीं हो। अगर आपका ऐसे हो रहा है ना आपके साथ, तो इसका मतलब कुछ तो गलत है या कुछ तो और है जो आपको शायद इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है लाइफ में करने के लिए। ओके मैम, थैंक यू। ओके, बाकी सब नहीं है कोई? हेलो हेलो सर। बोलो। हेलो। मैम, एक क्वेश्चन है मेरा। वन बाय ये पहले आप पूछ लो। एक ही पूछ लो। यस, पूछ लो भाई। हाँ जी, मैम, हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हेलो हाँ रौनक, मैम, एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट मैम, वेब डेवलपमेंट फील्ड में मैम हम क्या क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है इसमें तो बहुत अच्छे आपके अतुल जी हैं जो आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा चीजें बता पाएंगे आपको। लेकिन जब आप वेब के लिए कर रहे होते हो, ये वेब नहीं, या आप इसको ये कह सकते हो content। फिर भी बोला कि बताओ। आवाज कट रही है आपकी, क्या बोल रहे हैं? यस मैम, सर से तो कांटेक्ट में रहते ही है मैम, आप भी कुछ मतलब बता दीजिए। हाँ, तो आप अगर वेबसाइट की बात कर रहे हैं ना, आप वेबसाइट की नहीं, आप फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है? तो आप उस चीज से नो मैम, क्या चीज फुल स्टैक फुल स्टैक की अगर बात करें आप, तो आप अगर मैं बताऊं आपको, हमारे पास ना रिएक्ट की अगर मैं बात करूं ना, रिएक्ट आपका बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों के लिए यूज हो जाता है। आप एक फुल स्टैक बन सकते हैं, आप फ्रंट एंड भी लिख सकते हैं, आप एंड्रॉइड भी कर सकते हैं, रिएक्ट नेटिव आपका आ रहा है, आप ये एक ही लैंग्वेज से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फ्लटर मैम, दैट इज फ्लटर। फ्लटर है आपका, ठीक है? तो फ्लटर में एंड्रॉइड, iOS, बैकएंड सब कुछ हो जाता है। तो आप लोग इवन कॉटलिन, अगर मैं एंड्रॉइड की बात करूं, तो उसमें भी ये चीज आ गई है। आप इस चीज को ये देखिए कि हर एक लैंग्वेज जो है अब, उसमें आपके ऑप्शंस खुल रहे हैं कि वो सिर्फ बैकएंड के लिए डिपेंडेंट नहीं रह गई है कि बैकएंड इससे लिखा जा सकता है, उससे फ्रंट एंड भी लिखा जा सकता है, उससे एंड्रॉइड एप्लीकेशंस भी बन सकती हैं। तो आपके पाथ्स खुल ही रहे हैं, जितनी लैंग्वेजेस बढ़ती जा रही है, जितनी प्रोग्रेस हो रही है उस चीज में। आप घर बैठे हुए ना, एक दिन आप अगर सीख जाएंगे चीजें, आप 2 साल 2.5 साल के बाद अपनी खुद की ऐप बना सकते हैं, एप्लीकेशन या वेबसाइट्स या सब चीजें कर सकते हैं। वेबसाइट में तो वैसे भी जो बैकएंड कर लेता है, बैकएंड अगर आप किसी चीज में लिख रहे हो, फ्रंट एंड में उसको इजी होता है सीखना किसी चीज को करने के लिए। तो ये हमेशा एक इंडिपेंडेंट चीजें हैं जो आप एक खुद का सॉफ्टवेयर आप अकेले भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको किसी अलग बंदे की जरूरत पड़ेगी। हर एक लैंग्वेज आपको एक कैपेबिलिटी दे रही है कहीं ना कहीं। यस ओके मैम, थैंक यू। यस सर। हाँ रौनक, मेरा मैम क्वेश्चन ये था कि हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था मैम कि कैसे रेगुलर बेसिस पे कैसे काम करें। मतलब कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो आज बहुत कर लिया, लेकिन फिर कल नहीं हो पाता उतना, फिर उससे घटते चला जाता है, फिर एक दिन बहुत कर लेते हैं, फिर ऐसे मतलब रेगुलर नहीं हो पाता है कोई काम। जैसे मतलब सोच के 8 घंटा करना है आज, तो वैसे नहीं हो पाता है, कभी 4 हो जाता है, फिर कभी कर ही नहीं पाते हैं। तो इसको कैसे कम किया जाए?
8 घंटे तो बहुत ज्यादा है बट ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब नहीं, मैं कभी कभी 20 घंटे भी काम करती हूँ पूरा दिन, ऑफिस के बाद अपना काम और ये सब चीजें। बट क्या होता है ना, जरूरी नहीं है आप रोज एक जितना काम कर पाए, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। किसी किसी दिन ब्रेक चाहिए होता है, और माइंड को ब्रेक देना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रिफ्रेश होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं है, मैंने जैसे बोला ना, आधा घंटा भी करो, सिर्फ आधा घंटा भी एक दिन में दे दिया ना आपने किस चीज को, तो उसका मतलब आपने किया तो है, आपका मन तो किया कि यार नहीं यार मुझे कर लेना चाहिए उस चीज को करने के लिए। तो ये कभी मत रखना कि 8 नहीं दे पाया या 5 दे पाया या 4 दे पाया तो मेरा इंटरेस्ट लूज हो गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। कभी कभी लाइफ में शायद प्रायोरिटीज और आ जाती हैं उस टाइम पे कि ये काम करना है या वो काम करना है, या शायद माइंड ऐसा होता है कि आज मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, मैं कल इस चीज को और ज्यादा अच्छे से, शायद मैं कल 12 घंटे दे पाऊँ। तो अगर ऐसा भी कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटरेस्ट लूज कर रहे हो, आप बिल्कुल सही पाथ पे हो। ह्यूमन है हम लोग मशीन्स नहीं है कि हमें जो कह दिया गया हम उस तरीके से काम करेंगे, ऐसा कभी नहीं हो पाता। मैं भी कभी कभी पूरा दिन का ब्रेक लेती हूँ, ऐसा कभी नहीं होता मैं पूरा संडे कुछ नहीं करती या बिल्कुल कोड को हाथ ही नहीं लगाती या काम नहीं कर रही होती। तो ये इट्स ओके टू डू लाइक दिस, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। बट हाँ, अपना उस चीज को अप एंड डाउन करते हुए ना, कि आपने एक दिन बहुत ज्यादा कर लिया, एक दिन कम कर लिया, ज्यादा कम, ये चीज हमेशा रखना, बस बीच में वो गैप नहीं आना चाहिए। वो है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही हो आप, कितनी कोई गलत नहीं कर रहे उस चीज में। ओके मैम, थैंक यू। हाँ कोमल, यस मैम, कोमल। हाय मैम, जैसे हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच, तो मैम जैसे अभी हम सेकेंड ईयर में गए, और इस लॉकडाउन के अकॉर्डिंग कॉलेज का कुछ मतलब जैसा सीन चल रहा है हम सब जानते हैं, एंड बिहार को लेके इंटर्नशिप एंड कंपनीज ये सबके माइंड में। तो अभी लॉकडाउन के अकॉर्डिंग अगर कोई स्टूडेंट इंटर्नशिप करना चाह रहा है या फिर कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहा है अपने फील्ड में, जैसे बाकी सीएस को लेके तो हम आगे बढ़ सकते हैं कि उसमें बहुत सारे लैंग्वेज सीख सकते हैं, बट इलेक्ट्रिकल को लेके तो मैम क्या कैसे करना चाहिए, फिर इस चीज को कैसे डिसाइड करें, किस बेसिस पे हम आके। मुझे इलेक्ट्रिकल का, मुझे इंटर्नशिप्स का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है कि उनकी इंटर्नशिप्स किस तरीके से होती हैं, बट हाँ बहुत सारी कंपनीज के अंदर ऐसा अवेलेबल है, जो मेरे फ्रेंड्स जैसे मारुति, यामा, सुजुकी, या फिर उसमें रिफाइनरीज होती हैं या थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, इन जगहों पे अप्लाई करते हैं। मैकेनिकल की जैसे थे वो लोग। मैम एक और बात मैं मेंशन करना एक और मैम, अभी जो भी आपने कंपनीज का नाम लिया इंटर्नशिप, एक्चुअली मैम वहाँ होता है, लेकिन उन्हें भी कुछ एक्सपीरियंस या फिर कुछ आपको चाहिए होता है, उनकी भी कुछ कैटेगरी होती है या फिर कुछ लेवल होता है। लेकिन अभी एट दैट प्रेजेंट कि लॉकडाउन के कारण कुछ भी नहीं है जिससे मतलब बाकी कॉलेजेस का तो नहीं, बिहार के लेवल का मैं बता रही हूँ कि मैम इलेक्ट्रिकल का तो बिल्कुल मतलब लेवल बहुत ही यहाँ पे ऐसा है, क्योंकि कोई लैब नहीं हो पाता है, क्योंकि उतना मतलब एनालॉग या सिस्टम नहीं है यहाँ पे। ये सब चीज को लेके बच्चे पता है क्या बात है, पैंडेमिक ने ना ये साल तो आप ये सोच लो कि इसने तो खराब ही कर दी है बहुत सारी चीजें। मतलब ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल पे भी पड़ा है। सेकेंड ईयर मैम, इसके अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं है हम रुके हुए हैं, हम तो सेकेंड ईयर में हो ना, इतनी मत सोचो, इतना टेंशन नहीं लो उन चीजों को लेके, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी कुछ आपका सीखने के लिए ऑनलाइन चीजें अवेलेबल होंगी ना, आप इस साल उन चीजों को सीखने में लगा दो। देखो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है ना, नेक्स्ट ईयर ऐसा अपने आप को बना लो कि आपको कोई मना ही ना कर पाए। ऐसा नहीं है, मतलब क्योंकि इस साल ना बहुत लोगों को बहुत सारी चीजों के लिए प्रॉब्लम हो रही है, बहुत लोगों को, बहुत सारी कंपनीज बंद हुई हैं, बहुत सारे लोगों को निकाला गया है, तो वो वाली चीज के उसमें ना इस साल सबके साथ ये चीज हो रही है। लेकिन अपना ये वाला टाइम ना उन चीजों को सीखने में लगा दो। अगर आप इंटर्नशिप के थ्रू कंपनी के एक्सपीरियंस नहीं ले सकते ना, वही चीज नहीं हो पा रही ना, लेकिन इस टाइम पे, लेकिन आपकी खुद की करने वाली चीज तो आपके पास अवेलेबल है ना, कि आप खुद से तो सीख सकते हो ना। यस मैम। मैम बेस्ट टाइम क्या होता है अगर आप मतलब इंटर्नशिप, अगर ये पेंडेमिक नहीं भी रहे तो एक बेस्ट टाइम कि हाँ हमें इंटर्नशिप करनी चाहिए खुद के कॉलेज से या फिर बाहर जाके कहीं भी, इसके लिए एक बेस्ट टाइम? हमारा जो होता है ना, मेरे कॉलेज का था 3rd या 4th ईयर में था, ठीक है। अब क्या चीज होता है, अगर सेकेंड ईयर में भी आप बहुत अच्छा कर गए हो ना किसी फील्ड में, आप कर सकते हो,
थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक आते आते ना क्या होता है, आप ना लैंग्वेज पे या आप अपनी 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 फील्ड की चीजों पे पकड़ एक ले लेते हो कि मुझे, मैं इस चीज को कर सकता हूँ अच्छे से या कर सकती हूँ। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, आपको पता ही नहीं होंगी चीजें, ठीक है, आप धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो, आप उन चीजों को सीखते जाते हो, तब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना कि ये मशीनरी कैसे काम करती है, ये कैसे काम करता है, आप उसके बारे में आंसर इजीली कर पाते हो। तो वो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आप दोनों में इवन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई वो नहीं है कि अगर सेकंड ईयर में आपकी इंटर्नशिप का नहीं हो रहा, सेकंड ईयर में बहुत लोग करते भी नहीं है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। उन चीजों को अपना सीखने पे लगा दो कहीं और। अगर इस टाइम पे आपका कंपनीज का नहीं हो पा रहा है, तो आप अपनी खुद की ट्रेनिंग का अगर आप कहीं पे भी कर सकते हो। मुझे नहीं पता इसका ऑनलाइन ट्रेनिंग का अवेलेबल है या नहीं, इलेक्ट्रिकल का थोड़ा सा मुझे कम आइडिया है इस चीज में, लेकिन अगर वो चीज भी अवेलेबल या नहीं, आपने कहीं चेक किया है? बट मैम बहुत ही कम साइड पे, बिकॉज इसमें लैब की भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है जो कि नहीं पॉसिबल है ऑनलाइन, या फिर इतना फैसिलिटीज नहीं। हाँ, वही ऑनलाइन में ही सब चीजें अवेलेबल सही से आप सीख नहीं पाते। ये सबके साथ हो रहा है इस चीज के बारे में। लेकिन जितना कर पा रहे हो इस साल के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, क्योंकि अगर ये ना होता तो फिर आपका कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना। ये तो एक्सेप्शनल केस हो गया है इस बार का, तो इसको कम कर लो। कम कर पा रहे हो तो कम कर लो, कोई बात नहीं, जितना उन चीजों से कर पा रहे हो, क्योंकि बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हुआ है। बट उसके बाद नेक्स्ट ईयर तो फिर सब कुछ खुल रहा है, सब कुछ हो ही जाएगा। अब तो ऑलमोस्ट चीजें भी खुल गई हैं, अपनी प्रिकॉशंस के साथ आप बाहर जा सकते हो, तो उनको वहां पे आप तब कर सकते हो। थर्ड ईयर कोई बहुत बड़े नहीं हो गए हो आप, और इवन लोग 2-2 साल भी जॉब नहीं करते हैं, उसके बाद जॉब करते हैं। तो ये सिर्फ आपका वो है कि किसी के साथ कंपटीशन नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे से एक्सेल कर लेना उस चीज के अंदर। एक्चुअली मैम जैसे हमारा सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर, इसमें जो भी सब्जेक्ट है उसमें लैब भी है, एंड हम सब्जेक्ट बस थ्योरेटिकली तो पढ़ रहे हैं बट लैब नहीं कर रहे। देन हमें 50% सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, 50% हम लोग एनालाइज ही नहीं कर पा रहे कि हाँ क्या सर्किट है और कैसे है, और वो हम ऑनलाइन भी नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वहाँ पे भी हम ऐसे नॉर्मली करते जा रहे हैं। वर्चुअल लैब का भी बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन प्रॉपर पूरा सिस्टम उसमें भी नहीं है। ये सब अभी पता है, आप तो फिर भी बड़े हो, कॉलेज के स्टूडेंट्स हो। आप ही सोचो जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी शायद नर्सरी क्लास में ज्वाइन किया था, उनका सोचो वो बेचारे कैसे कर पा रहे होंगे चीजें। ये ना इस साल सबके साथ ऐसा हो रहा है, तो इस चीज को ना कॉप अप भी कैसे करें, ये बहुत प्रैक्टिकल, मतलब बड़ा इसके आंसर्स बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें आ सकती हैं इसके लिए। लेकिन हाँ, मतलब मैं आपकी ये चीज समझ रही हूँ, और वो 50% से ज्यादा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि घर पे आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स ही अवेलेबल नहीं होंगे जिससे आप इन चीजों को सीख पाओ। बट नेक्स्ट ईयर आपको थोड़ा सा और लोगों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तब आपके पास क्या होगा कि आपको जॉब्स ना धीरे धीरे स्टेबल हो रही हैं दोबारा से, कि हाँ मतलब धीरे धीरे कंपनीज अपने आप को स्टेबल कर रही हैं, तो आपको बहुत एक्सेल करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, उस चीज को ना नेक्स्ट ईयर आपको इन चीजों को करना पड़ेगा। इस ईयर तो बहुत मुश्किल है, और आपकी गलती नहीं है इस चीज में, कोई भी आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे कंप्यूटर्स का है वो लोग ऑनलाइन किसी भी चीज पे सीख सकते हैं, लेकिन जिनका इंस्ट्रूमेंट्स का काम है ना, उनके लिए बहुत मुश्किल है ना ही आप लोग खरीद सकते हो उन चीजों को। तो इस साल तो बहुत मुश्किल है इन सब चीजों के लिए डील करना। जैसे मैं अभी अपने फील्ड पे वर्क नहीं कर पा रही हूँ, मैम सीएस में सर से मतलब अतुल सर से तो बहुत अच्छी इंटरेक्शन है, तो उनसे आइडिया मिलती है। लेकिन मैम ऐसा कोई आइडिया जो हम करे, अलग फील्ड का वर्क करे, लेकिन इन फ्यूचर वो मेरे फील्ड को मतलब आगे चल के हेल्पफुल बने मेरे लिए, या फिर हेल्प हो सके उससे। अगर मैं हार्डवेयर और इन सब चीजों की बात करूं, तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग इस पे भी बनाते हैं ऐप, जो आपका ये है आईओटी जो एप्लीकेशंस होती हैं। आईओटी का मैं बता देती हूँ क्या होता है, हार्डवेयर के साथ जुड़ा हुआ। जैसे क्या होता है, ब्लूटूथ के साथ मैंने कोई चीज जोड़ दी है, और उसको मैंने ये चीज किया कि आपने वहां पे उसको बोला कि ब्लूटूथ से ना ऑटोमेट कर लिया, अपनी एप्लीकेशन बना ली एंड्रॉइड की, ठीक है, और मेरे घर पे मैंने वो ब्लूटूथ रखा हुआ है। या अच्छा, आपने ये देखा होगा ना अमेज़न की अलेक्सा और हेलो गूगल, ये खुद से असिस्टेंट होते हैं, गूगल असिस्टेंट। आप बोलते हो, कुछ भी सुन रहे होते हैं, फोन से इनको डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हो एप्लीकेशंस के थ्रू। तो यहाँ आपकी दोनों चीजें काम आ रही हैं, आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें भी काम आ रही हैं। हार्डवेयर के अंदर सर्किट्स आप जो बनाते हो ना, वो इस तरीके से ही डिजाइन करते हो, और जो ये कंप्यूटर्स का है वो एप्लीकेशंस काम आ रही है। तो इंजीनियर्स सब चीजों में घुस जाते हैं ऐसे, इस तरीके से।
आप म्यूटेड उन चीजों को आप IoT के बारे में पढ़ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पढ़ना, उसका मतलब यही है आप हार्डवेयर को एक तरीके से कंप्यूटर से अपना कंट्रोल करना सीख चीजें कर रहे हो। आप अपनी जैसे मेरी फर्स्ट कंपनी में प्रोडक्ट था कि बल्ब है, उसको मैं फोन से स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकती हूँ, लाइट की कलर चेंजेस कर सकती हूँ। तो वो सारी चीजें आपने कैसे की, ब्लूटूथ के थ्रू या किसी और हार्डवेयर के थ्रू। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो, लेकिन उस बल्ब को बनाया है और उसकी जो सर्किट्स को डिजाइन किया है ना, वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग करते हैं, वो हम नहीं कर पाते हैं। तो वहां पे आप लोग बिल्कुल काम कर सकते हो, आप इनके बारे में पढ़ना। मैम IoT बेस्ड फील्ड आती है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। हाँ यस मैम। आप दोनों चीजों के साथ आप बहुत अच्छे से डील कर पाते हो, ऑटोमेशन के साथ भी और ये सब चीजें भी। कोमल, हेलो। Thank you so much, ma'am. And thank you so much, sir, Okay. for this opportunity. Any other question from any other? Sir, आपका साउंड लैग कर रहा है। हेलो। यहाँ पे देख रही थी, किसी ने पूछा हुआ है कि व्हाट वुड बी द, अच्छा ऊपर से देखती हूँ एक सेकेंड में। इंटर्नशिप्स हो गया। मैम एक क्वेश्चन ये था, व्हाट अबाउट अपॉर्चुनिटी फॉर CS थ्रू गेट इन DRD और इसरो? बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। गेट का स्कोर ना बहुत सारी जॉब्स के लिए मायने रखता है। जैसे अभी कोमल मुझसे पूछ रहे थे, आप रिफाइनरीज और इन सब चीजों के लिए अगर आपका गेट का स्कोर अच्छा है ना, ऐसे ले लेते हैं वो आपको बिना अच्छे इंटरव्यूज के साथ भी। आप अगर गेट का स्कोर अच्छा कर लेते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब्स में तो बहुत जगहों पे वो आपको हेल्प करेगा। उसका एक परसेंटाइल मैटर करता है हर कंपनी या ये रिफाइनरीज या इनके अंदर तो एक पर्टिकुलर डिफाइंड है कि अगर इस बंदे का गेट का इतना अच्छा स्कोर है ना, इसको ले लो। इस तरीके की चीजें होती हैं। तो आप लोग अगर अपना गेट, अगर आपका फोकस गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर है ना, आप अपना गेट का स्कोर, और आपकी फील्ड्स भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा है, मतलब कंप्यूटर्स के लिए भी है लेकिन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा है ना, तो मैकेनिकल, आप इस चीज को तो गेट को आप बहुत अच्छे से अपना स्कोर करके और अच्छी कंपनी में जॉब ले सकते हैं। तो गेट की पेपर देने का थर्ड ईयर से भी हम गेट अटेम्प्ट कर सकते हैं? मेरी ख्याल से शायद लास्ट ईयर का है, उसमें थर्ड ईयर तो थर्ड ईयर इस बार से हो गया है। इस बार से यस मैम। थर्ड ईयर में गेट अटेम्प्ट कर रहा है और बाई चांस अगर गुड रैंक स्कोर कर चुके या फिर गुड रैंक आ गया, तो फिर वो कंपनीज को अपना ये कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कंपनीज क्या है, आपको वो टाइम दे देंगी कि आप कॉलेज खत्म 3 साल के लिए वैलिड हो रही है। गेट की जो स्कोर आ रही है वो आप एक बार गेट क्वालिफाई करने के बाद 3 साल तक आपकी स्कोर वैलिड है। और 3 साल तो बहुत है। 3 साल तक वो उस स्कोर से कहीं भी ले सकते हैं प्लेसमेंट। हाँ, तो 3 साल तो बहुत है। फिर तो आपको क्या करेंगी कंपनीज, आप अप्लाई कर सकते हो, बट आपको वो बोल देंगी कि कॉलेज खत्म करने के बाद आप इस डेट से ज्वाइन कर सकते हो। तो अप्लाई तो आप कभी भी कर सकते हो। और गेट तो कितनी बार दो, एक एज होती है शायद 31 32 आई थिंक शायद, ठीक है। आप गेट तब तक कितनी बार भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, हर साल दो गेट। मैम कॉर्पोरेट में फ्रेशर्स के लिए ईयर गैप मैटर करता है क्या आफ्टर बीटेक? किसके लिए? कंपनीज में ईयर गैप? हाँ जी, फ्रेशर्स के लिए। उस ईयर को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास रीजन वैलिड होना चाहिए। जैसे आप किसी गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या आप अपना कुछ स्टार्टअप आइडिया कर रहे थे, आप ऐसा कुछ कर रहे थे ना, तो कंपनीज उस चीज को मान लेती हैं। लेकिन उससे पहले सबसे ऊपर है आपके स्किल्स होने चाहिए। आपके स्किल्स है ना, तो वो फिर इतना नहीं देखती। थोड़ा सा कभी कभी इस चीज का किसी कंपनी के लिए हो जाता है, लेकिन सबके लिए नहीं होता। तो आप अपना स्किल्स का और अपना उस ईयर गैप का, आप उसमें क्या कर रहे हो, अगर आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ अच्छा करा होना चाहिए उस चीज में, ऐसा नहीं कि आपने किस तरीके निकाल दिया है, बस उसको ध्यान रखना। मैम प्राइवेट कंपनी की रिक्रूटमेंट थ्रू आउट द ईयर चलती है या कोई फेज वाइज होती है? क्योंकि अगर मान लीजिए फ्रेशर्स अभी अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद फिर उनका टाइम गैप आ जाएगा या ये ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर प्रोसेस है? ये डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर। कई बार वैसे क्या होता है, दिसंबर या उसमें अप्रैल के अराउंड शायद, इसमें फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होता है या फिर दिसंबर के अराउंड, इसमें कंपनीज बहुत ज्यादा रिक्रूट कर रही होती हैं। लेकिन अगर किसी कंपनी में जॉब्स अवेलेबल हैं, जैसे अपना बड़ी कंपनीज हैं, इनके अंदर तो हमेशा चलती रहती हैं, इनके अंदर कोई ऐसा टाइम नहीं होता
लेकिन जो छोटी स्टार्टअप्स हैं इनके अंदर ऐसा होता है कि या तो इनके यहाँ पे बंदे बहुत छोड़ के जा रहे हैं या फिर इनका प्रोडक्ट बहुत इन्हांस हो रहा है तो इनको लोगों की जरूरत है, ये तब हायर कर रहे होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अप्रैल और दिसंबर के टाइम के पास हो रहा होता है। लेकिन जो सर्विस बेस्ड या बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं इवन, उनमें हमेशा चलता रहता है, उनमें आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं आती। आपके पास हमेशा कहीं ना कोई कंपनी ऐसी होगी जिसकी जॉब्स अवेलेबल होंगी। तो ये चीज ऑलमोस्ट चलती रहती है 70% कंपनीज के लिए। मैम प्राइवेट कंपनीज में यदि प्लेसमेंट के लिए गेट की स्कोर वैलिड हो मायने रखती है? प्राइवेट के लिए इतना नहीं, क्योंकि उसमें तो इवन आपकी परसेंटेज भी अगर 70 अबव या 60 अबव है चल जाता है काम। मेन आपका मैटर करता है आप जब आप गवर्नमेंट मतलब किसी का क्राइटेरिया होता है कंपनी का, बस उन्हीं के अंदर ये मैटर कर रही होती है, अदरवाइज तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। स्किल्स मैटर करती है, स्किल सेट, सिर्फ स्किल। एक ये था व्हाट इज द मोस्ट कन्वीनियंट लैंग्वेज फॉर एंड्रॉइड डेवलपमेंट। मैं ये कहूंगी थोड़े से जावा के बेसिक्स वैसे सीख लो, मतलब पता होना चाहिए क्या है, बट कॉटलिन और फ्लटर इसका भी आंसर मैं बाद में करती हूँ। लेकिन जावा और कॉटलिन की अगर मैं बात करूँ तो कॉटलिन के लिए जाना, क्योंकि अब गूगल हर चीज के लिए सपोर्ट भी वही कर रहा है और उसकी प्रेफर्ड लैंग्वेज भी यही है, और आपका डेवलपमेंट टाइम और कॉस्ट हर चीज ये बहुत बचाएगा, एफर्ट्स आपके बहुत बचाएगा, आपको मजा आएगा इसको करने में। ये एक तरीके से बहुत ज्यादा वैसे वाली लैंग्वेज है आपकी, नॉर्मल जैसे मैं बात कर रही हूँ ना आपसे, इस तरीके से लिखने वाली लैंग्वेज है, तो आपको मजा आएगा इस चीज को करने में। फ्लटर और कॉटलिन का अगर मैं आपको बात करूँ, एक है नेटिव और एक है दोनों, जिसमें iOS और एंड्रॉइड दोनों हो जाती हैं। अब थोड़ा सा फ्लटर का भी अच्छा हो गया है, पहले इतना ज्यादा नहीं था, बट एंड्रॉइड को तो कोई मार नहीं दे सकता मतलब कॉटलिन जो नेटिव फील है ना उसको कोई मार नहीं दे सकता। आप देखो, एक वेब एप्लीकेशन आप चलाते हो फोन के अंदर या फिर आप एक नॉर्मल एप्लीकेशन चलाते हो, आपको किसमें ज्यादा मजा आता है? आपको नेटिव में ज्यादा मजा आता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आप लोगों का कुछ और भी हो। तो उसमें क्या होता है ना कि आपको कहीं ना कहीं नेटिव फील कभी नहीं जाने वाली, तो ऐसा तो अभी तो नहीं जाने वाली, आगे के सालों का मुझे भी नहीं पता। तो कॉटलिन हमेशा आपको एक नेटिव फील, अब तो कॉटलिन के अंदर भी मल्टी प्लेटफॉर्म आ गया जिससे आप iOS और एंड्रॉइड दोनों की एप्लीकेशन बना सकते हो। अब जिसने नेटिव में कॉटलिन में पहले ही अच्छा काम किया हुआ है उसके लिए तो और इजी हो गया कि वो मल्टी प्लेटफॉर्म के लिए सीख सकता है चीजें, और उसमें आपकी प्रॉपर नेटिव फील रहती है, उसमें कोई वो वाली फील भी नहीं जाती आपकी। तो कॉटलिन आपको बहुत सारी चीजें दे रहा है ऐसे वाली, बट वही आपका इंटरेस्ट भी मैटर करता है मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि मैं ज्यादा नेटिव के अंदर इस टाइम पे हूँ। लेकिन नेटिव फील जो है वो वेब एप्लीकेशंस या दूसरे वाली वो स्लो होती है थोड़ा सा काम करने में, स्लो एज इन जब आप यूएक्स पे काम कर रहे होते हो, जब आप क्लिक कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो फील नेटिव की बहुत ज्यादा बेटर है अभी। Okay, any other question? Yes sir, good evening ma'am. Hi. myself आनंद मैम, आप आरोग्य सेतु ऐप की मेंबर है ना, तो मतलब ऐप का मतलब आइडिया कहाँ से आया इतना अच्छा? इसके लिए मैंने मतलब इस कोविड-19 में वो ऐप कितना यूजफुल रहा है? मैंने इसके बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं आप मुझे कनेक्ट करोगे ना, मैं वहां से आपको और लिंक्स भी दे दूंगी। बाकी गवर्नमेंट क्या है, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, ह्यूमन माइंड जो होता है ना हर चीज को याद नहीं रख सकता। आपको भी पता है कोविड कैसे फैल रहा था, कोविड एक बंदे से फैल रहा था, है ना। और हमें मैं जैसे आज किसी से मिली हूँ या कोई एक बंदा है, वो किसी 4 लोगों या 5 लोगों से मिला है, लेकिन 4 दिन बाद उसको पता चलता है कि उसको कोविड है। क्या उसके लिए ये याद रखना पॉसिबल है कि वो सारे बंदे जिससे मिला था वो सबके बारे में बता पाए? पहली बात तो वो खुद ही बीमार होगा, दूसरा वो बता भी नहीं पाएगा क्योंकि उसे याद ही नहीं होगा। लेकिन अगर आपने किसी मशीन को ये चीज बोल दिया ना कि ये मशीन याद रख ले कि मैं इस टाइम पे क्या क्या चीजें किस किस से मिला था या मैं किस किस के पास आया हूँ, तो मशीन तो हमेशा वही काम करेगी जो चीज है। तो इसलिए बहुत टाइम पहले गवर्नमेंट ने एक ट्वीट किया था कि उन्हें टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन चाहिए इस कोविड से फाइट करने के लिए, जब ये चीजें स्टार्ट हुई थी, ताकि अगर किसी को कोविड हो जाता है तो उसकी डेटा से हम ये पता लगा सके वो किस किस बंदे से मिला है। और डेटा में एज सच कुछ वो नहीं होता, ऐसे वाली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि सिर्फ एक
नाम होता है उसका और कुछ ऐसा वाला होता नहीं, ताकि उस बंदे की नाम से जो बंदा रजिस्टर्ड है उसको एक नोटिफिकेशन भेज दी जाए, एक तरीके से ऐसा होता है। तो उसमें क्या हुआ कि अब जब गवर्नमेंट ने ये ट्वीट किया तो उस टाइम पे हमारी कंपनी के बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स हैं जो गवर्नमेंट के साथ इन चीज़ों में इन्वॉल्व है हमारे, तो धीरे धीरे हमारे पास ये चीज़ आई कि अगर हम वॉलंटरी इस चीज़ के साथ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और देखो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आप कुछ भी कर सकते हो लोगों के लिए, जैसे आप उनका पैसों से हेल्प कर दी, उनको घर दे दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये मेरे पास शायद एक मौका था कि मैं उस चीज़ से अपनी कंट्री को कंट्रीब्यूट कर सकती अपनी स्किल से, तो why should I have said no? So इस तरीके से मैं उसमें इन्वॉल्व हो गई। थैंक यू मैम। Okay, any other question? गुंजा तुम लोग को नहीं है? गुंजा मैत्री? अगर अभी पूछने में आप लोगों को ऐसे कुछ हो भी रहा है हेजिटेशन, आप लोग मुझे कभी भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं वहां पे आंसर कर दूंगी। ऐसा भी कोई वो नहीं है कि आपको ऐसे वैसे डरने की तो जरूरत ही नहीं है, मुझे नहीं पता आप लोग क्यों डर रहे हो, मैं भी इंसान हूँ। मैम एक क्वेश्चन है कॉमन सा, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हम यहाँ के स्टूडेंट असाइनमेंट से बहुत परेशान रहते हैं, तो मैम थोड़ा सा आप सब रहते हैं। यस ये मैम। ये हर जगह है, हर कॉलेज में है, हर बीटेक में है। हम ना अपना सिलेबस नहीं चेंज कर सकते, जैसा चलता आ रहा है बचपन से, धीरे धीरे चेंज हो रही हैं चीजें। जैसे अभी एजुकेशन सिस्टम में चीजें चेंज हुई हैं कि अब बच्चों को कोडिंग शुरू से सिखाया जा रहा है, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कॉलेज की बहुत सारी चीजें अभी तक चेंज नहीं हुई हैं। और वो शायद हमें इंडिया का पता है, बाहर भी असाइनमेंट्स पता है, ये कहीं पे भी दिक्कत ये आपको आएगी, बट ठीक है ना, कोई एक उस पर मेहनत कर लो, बाद में उसको और चीजें सिखा देना, उससे कॉपी करो। ऐसा ही क्योंकि फिर क्या है, उसको तब तक अगर कोई और मतलब ऐसे बांट लो चीजें कि हाँ मतलब वो इस चीज पे काम कर रहा है, नेक्स्ट टाइम उसको टाइम दे दो अपनी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, कोई और उसका काम कर ले, और उससे मतलब एक एक टाइम बना लो। हम तो ऐसे ही करते थे, मतलब मेरा तो वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि मैं तो टॉपर थी, तो मेरे को तो बनाने ही पड़ते थे असाइनमेंट्स, और अपने दोस्तों को देना होता था। लेकिन आप लोग ये चीज कर सकते हो सबके सब की, एक बार किसी ने बना लिया, एक बार इसकी ड्यूटी लगा दी कि ये बना ले, और उसके बाद लोगों ने उसकी तरीके से करना स्टार्ट कर दिया, नेक्स्ट टाइम उसको चांस दे दिया और चीजें सीखने के लिए, और कोई और बना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये हैक है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है इन चीजों का, ये सब कॉलेजेस में है। मैम ऑफ कैंपस के प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कैसे कर सकते? देखो प्रिपरेशन तो वही है ना कि आप लोग अपना शुरू से बेस अच्छा बनाते जा रहे हो। अगर मैं आपको रैंक की बात कर रही हूँ ना, कोड शेफ या हैकर रैंक, हैकर अर्थ, लीड कोड, अगर आपने ये चीज बना रखी है ना, रिज्यूमे में ये लिखा ही हुआ है, मेंशन ही किया हुआ है, आप कहीं पे भेजोगे ना ऑफ कैंपस तो कोई आपको मना नहीं कर पाएगा। लेकिन ये बेस ये बचपन से बनाना पड़ेगा उस चीज का। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से 4th ईयर में आए और आपने कहा यार मेरी तो ऑफ कैंपस लग ही नहीं पा रही है, ऐसा कभी नहीं हो पाता। आपको उस चीज के लिए शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी, उस चीज का एक आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ, क्योंकि दूसरे लोग आपको नहीं जानते ना, वो आपको जज किस तरीके से करेंगे आपकी स्किल सेट के, और वो स्किल सेट आपका कहीं तो आपका मेंशन होना चाहिए ना, वो चीज है। मैम बीटेक के इयर्स में प्रोजेक्ट करना कितना बेनिफिशियल है? माइनर या मेजर प्रोजेक्ट्स जब आते हैं वो आपके काम आते हैं कहीं ना कहीं आगे वाली चीजों के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें जैसे अगर आप इंटर्नशिप ही कर रहे हो किसी कंपनी के अंदर, तो वो आपकी एक तो इंटर्नशिप से कभी कभी तो कंपनीज ही आपको प्लेसमेंट्स ऑफर कर देती हैं, बट आपके कंपनी के एनवायरनमेंट के अंदर रह के चीजें सीख पा रहे होते हो रियल एनवायरनमेंट में, तो आप किसी और को बताते भी हो ना कि आपने ये चीजें यहाँ से की हैं, वहां से की हैं, या आपने कंपनी के अंदर काम कर लिया, तो ये चीजें आपकी बहुत काम आती है, क्योंकि उनको अब ये होता है कि इस बंदे को कंपनी का एक्सपीरियंस है, तो अब ये यहाँ पे भी काम कर लेगा अच्छे से, तो आपकी वहां से ये काम आ रही होती है। और आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो ना, तो आप ये सोचो ना, आपने आज तक छोटी छोटी चीजें सीखी हैं अलग से, लेकिन आपने जब किसी चीज पे बड़े लेवल पे काम करना स्टार्ट किया, आप सब चीजों को मिक्स कर रहे हो,
तो अब आपको एक्चुअली पता चल रहा है कि आपस में कैसे डिपेंडेंट है। अब इश्यूज तो अब आएंगे ना, प्रॉब्लम्स तो अब फेस करोगे आप, छोटी-छोटी चीजों पे तो कोई भी काम कर सकता है। तो वो वाला चीज जो है ना, वो लॉजिकल थिंकिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है, वो अच्छी होती है उन सब चीजों से, कि आप कितना अच्छे से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो। और ये सब चीजें ना आपकी इंटरव्यूज में भी जज करी जाती है। कभी कभी आप क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं कर पाओगे, लेकिन आप अगर आपको कोई सिचुएशन दी गई और उसका आंसर आपने इस तरीके से कर दिया है कि इंटरव्यूअर इंप्रेस हो गया, वो आपको ले लेगा। जरूरी नहीं है आपने सारे आंसर्स दिए हों, लेकिन आपने अगर उसको इस तरीके से कुछ वो बता दिया ना कि मैं इस प्रॉब्लम को ऐसे डील करूंगा इतने अच्छे तरीके से, तो यू आर इन फॉर दैट कंपनी। Okay, ma'am. It means project are very beneficial, ma'am. यस, बिल्कुल। Okay, ma'am. ओके, Question from my side are done. Any other questions? Hello. कोई भी क्वेश्चंस? मैं अब नेक्स्ट टाइम ये सुनना चाहूंगी आपके ग्रुप से भी कि सिर्फ अतुल इस चीज को लीड ना कर रहे हो। जैसे अगर गूगल के डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स मिले हुए हैं, बने हुए हैं, आप अपना ग्रुप इतना बड़ा बना दो कि डीएससी से भी बड़ा ग्रुप बन जाए आपका, आप उसकी पहचान। और ये सिर्फ तभी हो सकता है अगर आप रोज डेडिकेशन दिखा रहे हो उस चीज में। ऐसा नहीं है कि 4 दिन उस चीज को चलाया, बनाया और फिर नहीं किया इस चीज को। तो मैं ये चाहूंगी कि मैं अगर नेक्स्ट टाइम अतुल से बात करूँ ना, तो मेरे को वो बता रहे हो कि मैम उस दिन हम लोगों ने बात की, तो आज 2-2 4-4 लोग ना रिप्रेजेंटेटिव्स बनने के लिए रेडी हैं। इस चीज को महीने के लिए रखो कि 1 महीना ये संभाल रहा है, 1 महीना ये संभाल रहा है। सबको चांस दो, अपॉर्चुनिटीज दो। रिप्रेजेंटेटिव बन के ना आपको बोलने का कॉन्फिडेंस आएगा। और कई बार ना लोगों को नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो अपने बोलने के कॉन्फिडेंस से किसी को इतना इंप्रेस कर जाते हैं कि वो धीरे धीरे फिर चीजें भी सीखना स्टार्ट कर जाते हैं। तो वो सब चीजें आपकी ऐसे ही आ पाएंगी। छोटे छोटे ग्रुप से स्टार्ट करो और बड़े ग्रुप तक पहुंचो अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए। यहाँ तो पे सीखो और सिखाओ। मैम कितनी बार मैंने ये शेयर किया था मैम। इनिशियल मैं भी जब फर्स्ट ईयर में आया था तो मुझे भी बोलने का उतना नहीं था। अभी भी मैम हेजिटेशन होता है बोलने में, लेकिन वही था कि जब भी कॉलेज में था तो मैम ये कोशिश करता ज्यादा स्टेज शेयरिंग करूँ। स्टेज पे जब भी जाने का मौका मिलता था तो ये रहते थे कि नहीं स्टेज पे हम जाएं। हाँ, तो अब इन लोगों को होस्ट करने का मौका दो। कोई भी अपनी साइड से 2 लोग नॉमिनेट करो, इनको बोलो ये लोगों से बात करेंगे। जिस तरीके से अतुल ने मेरे से बात करी कि यहाँ पे वो नॉलेज शेयर करा सकते हैं या किस तरीके से होना चाहिए चीजें, आप लोगों को पिच करो ताकि वो आए, आपको नई चीजें सिखाएं। इस तरीके से आप नेटवर्क बनाओगे, इस तरीके से आप लोगों से बात करना सीखोगे, इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं लाइफ में, आप क्या अच्छा कर सकते हो, सीख सकते हो, ये सब चीजें सीखोगे। और हमने ऐसे सीखी और हम आज तक ऐसे ही सीख रहे हैं। तो ये इसमें आपका ही फायदा है, इसमें ना ही मेरा फायदा ना ही अतुल का फायदा है, इसमें आपका फायदा है। अपने से स्टार्ट करो तभी और चीजें अच्छी होती है। मैम ये तो मैंने मैम हमेशा कहा है मैम, ATPLC इज नॉट माय क्लब, ATPLC इज आवर क्लब। यस, ये मैम हमेशा मैंने कहा था। मैम जब भी मैं लिखता हूँ तो आई नहीं लिखता हूँ ATPLC के साथ, वी लिखता हूँ। मैम आप देख ये मैसेज भी इन लोग के पास गया होगा तो सारे मैसेज में वी लिख के गया था। अभी भी देखे ATPLC टीम बोले हुए थे मैम। तो वो पता है कि वो टीम में नहीं है, टीम में अकेले है मैम, लेकिन तब भी ATPLC टीम बोला था मैंने मैम। नहीं तो मुझे अब ये चाहिए कि, क्योंकि देखो अगर आप लोगों ने अभी से नहीं किया, अतुल तो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही जाएंगे। उस लड़के ने तो बहुत सारी चीजें अच्छी कर ली हैं जो मुझे बताते हैं, ठीक है। और उसका कोई अकेले का फायदा नहीं हो रहा है, वो औरों को सिखा रहे हैं ना, तो उससे उनका भी फायदा हो रहा है। तो लेकिन आप कैसे कर सकते हो ये आपका अब आपकी अपनी इसमें थिंकिंग आनी चाहिए कि मैं किसी चीज से एसोसिएट होके कैसे आगे बढ़ सकता हूँ या कैसे आगे बढ़ सकती हूँ। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई आपको सिर्फ गाइड कर सकता है किसी चीज के लिए, लेकिन कितना आगे उसमें आपको बढ़ना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू मैम। ओके, मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, थैंक यू। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे आप लोगों ने, और ये एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन था। आज मेरे को कोई टेक्निकल बातें नहीं करनी थी, क्योंकि ये सब ये क्वेश्चंस हमेशा जरूरी होते हैं लाइफ में आंसर होने कहीं ना कहीं से। तो अभी भी कुछ हुआ आपको, जस्ट कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन और ट्विटर। मैम ये डिस्कशन जरूरी था। सीखने के लिए तो मैम कहीं से भी सीखा जा सकता है, लेकिन
कोड कहीं से भी सीख सकते हो, लेकिन एक्चुअल में कैसे उस चीज के साथ आगे बढ़ना है वो बहुत जरूरी होता है। उसका आंसर कोई नहीं करता आके, हर कोई सिखा के चला जाता है छोटी छोटी चीजें। मैम तो ये तो हमेशा मैंने बोला है कि कॉलेज में आने के बाद ही मैंने जितना चीज सीखा है 80% कॉलेज में आने के बाद सीखा मैम, और यही थी मैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर से मैं एक्टिव थे मैम। फर्स्ट ईयर से हाँ, कोई भी क्लब हो, कोई भी इवेंट हो, आपको एम ये होना चाहिए कि आप उस ग्रुप में अकेले नहीं कर रहे हो चीजें, आप अब और लोगों को भी इंक्लूड करोगे। मैं अगर नेक्स्ट टाइम कभी टेक्निकल किसी चीज के लिए आई ना, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे आपके जैसे बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हों और डाइवर्सिटी हो, लड़के भी हों और लड़कियां भी हों, दोनों हों। मैम मेरे कहीं ना कहीं इतने सारे क्वेश्चन पूछे, आप लोग किस चीज के लिए हेजिटेट कर रहे थे? कर रहे थे मैम, एक्चुअली हम लोग आपकी बात बहुत सही ध्यान से सुन रहे थे ताकि हम उससे कुछ क्वेश्चन आउट कर सके, इसलिए वेट कर रहे थे। फिर अच्छा है, अगर ये रीजन था फिर तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज के बारे में, क्योंकि ये चीज ना हमेशा होनी चाहिए, दोनों साइड से होनी चाहिए। मतलब मैं चाहती हूँ दोनों ही बढ़े आगे इस चीज के लिए। थैंक यू सो मच मैम, आप अपना इतना अच्छा टाइम दी हम लोग को। हाँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा संडे में मैंने इतने नए लोगों से मिली आज, मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी है। कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में, बहुत बहुत अच्छा लगा मैम। सेशन कंडक्ट करेगा मैम। हाँ जी, एंड आल्सो थैंकफुल टू अतुल सर। अरे कोई नहीं, मैं कभी भी ऐसा कुछ होगा मैं इस चीज को करती रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। मेरे को ये चीज है कि आप लोग अपना पैशन ढूंढ लो। नेक्स्ट टाइम अगर मैं आऊँ ना, नेक्स्ट टाइम मुझे अभी अगर 10 लोगों ने इंटरेक्ट किया होगा, मुझे चाहिए कि 20-25 लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, जितने लोग हैं वो सब इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनके ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं रेज होके। नेक्स्ट टाइम मैं वो गोल जानना चाहूंगी कि आप लोगों ने अपना गोल सेट किया या नहीं किया, कि आपको क्या करना है लाइफ में। आज आप उस चीज पे वर्क करेंगे पहले जाके। मैम आई थिंक इसके रिगार्डिंग मैम आज से मैंने 2 मंथ पहले मैम काउंसलिंग सेशन एक खुद किया था, सभी को ये बताने के लिए कि आप अपना गोल थी या पर्पस डिसाइड करिए कि कहाँ आपको जाना है। क्योंकि मैम मैं भी इनिशियल से थी वो डिसाइड करके आया था, इसलिए आज मैं इतना मैं कर पा रहा हूँ मैम, कि वो डिसाइडेड है कि हमको अपने फ्यूचर में क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा होना चाहिए। पूरी तरह की पिक्चर हमारी कभी क्लियर नहीं हो पाती है, लेकिन थोड़ा सा कर लो कि आपको एक्चुअली में ये करना भी है या सिर्फ ऐसे ही कर रहे हो लेकिन आपका इंटरेस्ट कहीं और है। बस वो चीजें अपने अंदर ले आओ। लोग के कहने से तो नहीं कर रहा। चलो ठीक है, फिर करें एंड फिर। एनी अदर क्वेश्चन? हेलो श्वेता, तुमको कुछ नहीं पूछना है? हेलो यस मैम। सर क्लियर हो चुका सर, मैम इतना अच्छे से बता देते। मैम कुछ स्टूडेंट है, ये लोग है जो सिंसियर रहती है, कुछ है उन लोगों को लोग नहीं पूछ पाते हैं, वो थोड़ा शांत रहते हैं। यस मैम, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर मेरे से अकेले में पूछना हो, आप मुझसे अकेले में पूछ लीजिएगा चीजें। अपना चीजें अपना यहाँ पे अब आगे के लिए इस ग्रुप के अंदर चीजें करो और अपनी जो भी लर्निंग्स है, जो भी लोगों के साथ शेयर करो उसे। मैम ये कहीं ना कहीं इस ग्रुप के लिए भी कोवाइड मैम कहीं थी इन्फ्लुएंस। मैम अगर कोवाइड नहीं रहती तो ये बहुत आगे जाती, क्योंकि कोवाइड के चलते ऐसा बड़ा मैम इंटरेक्ट नहीं हूँ, मैं भी ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कॉलेज। हाँ, ये चीज थोड़ी सी हो गई है ऐसी, बट कुछ नहीं कर सकते। इस साल का आप लोग कुछ नहीं कर सकते, सबके लिए। जितनी बात आपने बोला वो सारे कुछ मेरे माइंड में है मैम, कि हम दूसरे से भी वो काम करवाए जो हम काम कर रहे हैं, लेकिन वही है कि यहाँ से डिस्टेंस से वो नहीं हो पाता मैम। नहीं, ये रीजन रखना ही नहीं ना, ये रीजन रखना ही नहीं। अब आज अगर लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन पुट किए हैं, चीजें सीखने के लिए लोग इतना ज्यादा हैं, तो इसका मतलब ये भी कर सकते हैं। मेरे को इनमें से कोई भी ऐसा नहीं लग रहा जो चीजें नहीं कर पाएगा। सबके अंदर इतना पैशन दिख रहा है मुझे कि इनको एक्चुअली में चीजें, पहली बात तो इन्होंने सेशन अटेंड करने आए तो उसी से ही समझ आ रहा है कि इनको लाइफ में कुछ चीजें चाहिए। बट ये सब बहुत अच्छा कर सकते हैं, इनको सिर्फ चांस देने की जरूरत है। इनको बोलो, इनको पुश करो, ये अपने आप करेंगे चीजें। ओके मैम, आई एम आल्सो थैंकफुल टू मैम दिस।
मैं थैंकफुल हूँ कि ये लोग मेरे एक शॉर्ट मैसेज पे इतने लोग सारे कोई आए। जस्ट मैंने शेयर किया हुआ था और ये लोग वहां से अटेंड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं था कि इनको था कि यहाँ पे कि नहीं एटीपीएलसी में हमको जा करके मिलता है, कहीं कुछ सीखने मिल रहा है, और इसके लिए मैं दिल से थैंकफुल हूँ इन लोगों के लिए कि थैंक यू क्योंकि मैम कोई भी मैम इनिशियल भी मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि कोई भी यदि अगर चल रहा है क्लब या कोई इनिशिएटिव रन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके जो मेंबर है या जो अटेंडीज है उनका थी कहीं ना कहीं योगदान। आज ही अगर मैं अटेंड करूं, मैं स्टार्ट करूं और यहाँ पे कोई नहीं आए तो वो तो फिर आगे जाएगा नहीं। तो यही है कि थैंकफुल इन लोग के लिए भी है, ये लोग मुझको थैंक कर रहे हैं, इनको भी थैंकफुल है मेरे साइड से। गुंजा कुछ पूछने वाले थे, मुझे लगता है शायद बोलने लगे थे कुछ, और गुंजा आपका कोई क्वेश्चन है? हाय गुड इवनिंग मैम। हाय गुड इवनिंग मैम, हम पूछना चाह रहे थे कि हम अपने रिज्यूमे में डालें कि वो बहुत स्ट्रांग हो, ये चीज। वही मैं बता रही थी कि एकेडमिक्स और करिकुलम सिर्फ वो नहीं मैटर करते, वो भी थोड़ा सा सही रखो, लेकिन उसके साथ साथ ना आप लोग ये अपना कहीं भी कोडिंग वाले उस पर अच्छा करना स्टार्ट कर दो और उस पर अच्छी रैंक बना लो। अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर कोई है उसको भी आप मेंशन करो, उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, माइनर या मेजर प्रोजेक्ट्स आएंगे आपके, उसको मेंशन करो। ये सब चीजें मैटर करती हैं, छोटी छोटी चीजें जो आपको लग रहा हो ना कि ये लिखूं या नहीं लिखूं, ये सब कुछ मैटर करता है। तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में कैसे मतलब कर सकते हैं, मतलब किस चीज का किस तरह का प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे अगर आपका ना देखो अभी आप कोई भी लैंग्वेज जब सीख रहे होगे, लैंग्वेज पहले तो आप डीएस सीख रहे होगे या डेटा स्ट्रक्चर अच्छा करके, तो लास्ट ईयर्स में जाते जाते आपको समझ आ रहा होता है कि मुझे इस लैंग्वेज में मन है काम करने का, उसमें कर पाओगे आप। कि आंसर मैं वही बोल रही थी, कुछ आंसर ना मैं नहीं कर पाऊंगी, कुछ आंसर्स आप अपने आप को खुद करोगे। हो सकता है आज आप इस चीज में इंटरेस्ट डालो, मैं बोल दूं आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना लेना, ठीक है, लेकिन 3 साल के बाद आपका इंटरेस्ट वेबसाइट बनाने का है, तो आप मेरी नहीं मानोगे, आप अपनी मानोगे। तो इस चीज के उसमें अपना बेस बनाते जाओ, उस टाइम पे आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, किस लाइन में जाने का, उस टाइम डिसाइड करना उस चीज को। अपनी इंटरेस्ट, क्योंकि सुन सबके लो लेकिन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजें करना की हो जाए। अभी से एक गोल सेट करके चलना बहुत हेल्पफुल होगा, मतलब आगे के लिए। हाँ, अपना गोल एक आपका गोल होना चाहिए, आपको हार्डवर्क और पैशन के साथ अपने स्किल्स इंप्रूव करने हैं। वो किसी भी लैंग्वेज किसी भी फ्रेमवर्क में आए, आपको मैटर नहीं करना चाहिए अभी कि आपने एक लैंग्वेज, अपने आप को किसी एक डिपेंडेंट मत बनाओ। मान लो कल आपने पाइथन सीखी, कल 2 सालों के बाद पाइथन का कोई जॉब ही अवेलेबल नहीं है, पाइथन बंद ही हो गई है, नई लैंग्वेजेस आ गई हैं, फिर क्या करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इसलिए आपका होना चाहिए कि आपके स्किल्स जो है, आपकी लैंग्वेज, आप जो बेसिक स्टैंडर्ड्स प्रैक्टिसेस हैं, वो अच्छे से आप इतना सीख गए हो कि भाई अब तो कोई भी आ जाए मैं तो आराम से कर लूंगी। वो चीज होना चाहिए बस आपका गोल हमेशा लाइफ में। फिल कर दिए फीडबैक फॉर्म? यस मैम। ओके लेफ्ट कर। थैंक यू मैम। ओके एनी अदर क्वेश्चन? मैम बहुत देर से पूछ रहा हूँ, यही मैम होता है मैम आपके साथ नहीं, ये मैं भी अगर अटेंड कोई सेशन करवाता हूँ ना तो बहुत बार पूछना पड़ता है। कोई बात नहीं, क्वेरी रिजॉल्व करने में किया था, कोई दिक्कत नहीं है। सबके अपने डाउट्स होते हैं, सबको क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके एनी अदर डाउट? और आई कोई डाउट है या हम एंड करें इस सेशन? फिर बहुत लंबा, मैं 1 आवर का सेशन था, 2 आवर। कोई बात नहीं, कोई। हेलो ऑल पार्टिसिपेंट्स। यस सर, आप एंड कर सकते सर। बहुत अच्छा रहा सर सेशन, थैंक यू मैम। ओके फीडबैक फॉर्म का लिंक तुम लोग को शेयर कर दिया गया हुआ, फीडबैक फॉर्म फिल कर दो, मैम को भी तो पता चले कि कैसा फीडबैक, क्योंकि वो फीडबैक हम जब भी होता है सेशन का शेयर करते हैं, मैम के साथ भी वो शेयर होगा फीडबैक। तो प्लीज फीडबैक फॉर्म फिल कर दो सभी को। ओके थैंक यू गाइस। थैंक यू। जब भी आपको मैं ऑल द बेस्ट अपने फ्यूचर करियर गोल्स के लिए भी,
मैं कोशिश करूंगी मैं दोबारा भी यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट कर पाऊँ चीज़ों के लिए, बट उससे पहले आप लोग, मुझे आपका डिटर्मिनेशन और ज़्यादा चाहिए, तो ये चीज़ अच्छा कर लूँ, बाकी मिलते हैं फिर दोबारा। यस मैम, जब जूनियर आ जाएंगे तो हम फिर से कनेक्ट, ये अगर मैम आपने थी समय दिया तो मैम फिर से कनेक्ट होंगे, और वो कॉलेज से होंगे, हम उस नेक्स्ट टाइम जब भी कनेक्ट होंगे तो कॉलेज से, वो जहाँ पे। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, बाय।